Hello all, welcome back to my YouTube channel. This is CA Abhishek Subramanian here, and today we are on lecture number 2 regarding direct tax CA IPCC. Direct tax from the module. Lecture number 1 has already been covered, जहाँ पे we have covered basic concepts में आपके जो भी illustrations है completely from number 1 to number last. Illustration कुछ 12 थे I think. तो 12 के 12 illustrations have been covered with conceptual explanation जिधर भी ज़रूरत था. Moving on to the chapter number 2, which is talking about your residential status and scope of total income. अब ये जो chapter है, this chapter has around 8 illustrations, but more focus is towards the concepts. क्योंकि recently काफ़ी सारे इसमें amendments आए हैं, because of which there is little bit broader understanding of the section, and which will also help you to understand various loopholes which have been covered by the government of India. मूविंग ऑन, अभी यहाँ पे जो भी मैंने येलो में मार्क किया है रिगार्डिंग दोज थिंग्स, दोज कंसेप्ट्स विल बी एक्सप्लेन बिकॉज ये चीज़ें आपके इलस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग लिंक्ड रहेंगे. बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो एंड द लेक्चर, if you are new to my channel, please do like, share and subscribe to my channel because you will be really gaining enormous amount of knowledge as we proceed with every lecture. Let us move forward. The first topic, residential status of individuals. अब बोलो, okay, a residential status on the basis of number of days of stay in India. Now individuals मतलब मेरे और आपके जैसे. अगर if any person, when is he or she considered as an individual resident in India? Residential status on the basis of number of days of stay in India. Under section 6(1), an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies any one of the following conditions. He has been in India during the previous year for a total period of 182 days or more, or he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 60 days in the relevant previous year. क्या बोल दिया फर्स्ट पॉइंट में ये बोला है कि इफ़ अ पर्सन लाइक मी, समझो मैं अगर फॉर फाइनेंशियल ईयर और प्रेफरेबली फॉर प्रीवियस ईयर 2021, इफ़ आई हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, देन आई बिकम अ रेसिडेंट. या तो फिर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 नहीं, उसके पिछले 4 साल में जाते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 1920, 1819, 1718 एंड 1617. ये फाइनेंशियल ईयर पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स का टोटल इंडिया में रहा हुआ दिन 365 डेज और मोर है. एंड जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें अगर मैं एटलीस्ट 60 डेज रहा हूँ तो मैं इंडिया रेसिडेंट बन जाता हूँ. इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड अबव, ही इज अ रेसिडेंट. इफ बोथ द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, द इंडिविजुअल इज अ नॉन रेसिडेंट. मतलब अगर यहाँ में से एक कंडीशन भी मैं सेटिस्फाई कर जाता हूँ तो मैं क्या बन जाता हूँ, रेसिडेंट बन जाता हूँ इंडिया में फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. अदरवाइज आई एम कंप्लीटली एक्सक्लूडेड एंड आई बिकम अ नॉन रेसिडेंट. अब देखो यहाँ पे द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन. तो अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर भी अगर आप रहते हो, से इफ यू आर समवेयर वर्किंग ऑन द कोस्टल एरियाज, तो अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स के अगर अंदर रहते हो तभी भी आप इंडिया में रहे हो ऐसा माना जाएगा. वो पर्टिकुलर पीरियड भी आपका 182 डेज या 60 डेज के इसमें काउंट हो जाएगा. इवन द स्टे इन अ शिप और अ बोट मूव्ड इन द टेरिटोरियल वाटर. मूव्ड मतलब क्या, रखा गया उधर, इट हैज़ बीन पार्क्ड ओवर देयर in a territorial waters of India would be sufficient to make the individual resident in India. Very good, very clear. It is not necessary that the period of stay must be continuous or active, nor it is essential that the stay should be at the usual place of residence, business or employment of the individual. आप किधर भी रहो भाई, ठीक है, आप किधर भी रहो इंडिया में, अगर आप हो उतने दिन के लिए अगर रहते हो तो आप रेसिडेंट बन जाते हो. ऐसा नहीं है कि आप आने चाहिए तो कंटिन्यूसली 4 महीने 6 महीने रहो. अब आ जाओ, परसों चले जाओ, नरसों आओ, उसके बाद चले जाओ 3-4 दिन बाद, फिर वापस आओ 5-6 दिन के लिए. अगर ऐसे करते हो तो भी अगर 182 टैली हो जाता है या 60 टैली हो जाता है तो वो पर्टिकुलर साल के लिए आप रेसिडेंट के एम्बिट में आते हो. फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया,
both the date of departure as well as the date of arrival are considered to be in India. अगर आप 6 दिसंबर को बाहर जा रहे हो तभी भी आप माने जाओगे आप इंडिया में रहते हो. अगर आप 15 दिसंबर को वापस आते हो तभी भी माना जाएगा आप इंडिया में ही हो. ठीक है. The residence of an individual for income tax purpose has nothing to do with citizenship, place of birth or domicile. Citizenship क्या होता है? जैसे आप जिधर पैदा होते हो तो वो आपका citizenship हो जाता है. Place of birth again similar. Domicile मतलब आप कहाँ रहते हो वो फर्क नहीं पड़ता. अगर समझो मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ, मैं इधर आया हूँ 200 दिन के लिए, इंडिया में आया हूँ, कोई इवेंट करने आया था, कोई बिजनेस के लिए आया था, कुछ भी चीज़ों के लिए आया था, मैं इधर आया हूँ, तो क्या हो जाता है वो चीज़, वो एक्सक्लूड हो जाता है. कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मैं सिटीजन, मैं अपने रिलेटिव से मिलने आया था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी उसमें काउंट हो जाएगा. 182 में काउंट होएगा. वो नंबर ऑफ डेज विल बी काउंटेड. An individual can therefore be a resident in more countries for tax purposes than one, even though he can have only one domicile. At a time, तो वो guys एक ही जगह पे रह सकता है ना. He cannot be in 2 places. He can either be in New Zealand or in India, for example. But tax purposes के लिए शायद वो resident उधर का भी हो सकता है, इधर का भी हो सकता है. It is possible, very much possible. क्योंकि वहाँ के अभी न्यूजीलैंड का रूल्स क्या बोलते हैं, we don't know it. इंडियन रूल्स में 182 है, हो सकता है शायद न्यूजीलैंड में 100 डेज होगा, तो हो गया ना 282 डेज, तो शायद वो दोनों जगह पे रेसिडेंट बन जाएगा. तो टैक्स पर्पसेस के लिए ही कैन बी रेसिडेंट ऑफ 2 प्लेसेस. बट ये सिटीजन या डोमिसाइल तो वो इंडियन एक ही जगह पे रह सकता है, या तो एट अ टाइम ही विल बी इन इंडिया और ही विल बी इन न्यूजीलैंड. नाउ जो ऊपर के स्टैंडर्ड कंडीशंस है यहाँ पे 182 डेज, 365 एंड 60, इन कंडीशंस में कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप ये एक्सेप्शंस में फॉल करते हो तो आपको ऊपर वाले कंडीशन में छोटे मोटे बदलाव दिखाएंगे. जैसे कि द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ देयर स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज और मोर. मतलब कुछ नीचे जो लोग दिए गए हैं, दीज पीपल, if they stay in India only for 182 days or more, then they are going to come under the ambit of resident. Otherwise, no. In other words, even if such persons were in India for 60 days or more, but less than 182 days in the relevant previous year, they will not be treated as resident due to the reason that their stay in India was for 365 days or more during the 4 immediately preceding years. तो यहाँ पे क्या बोल दिया है, सिंपल एक ही कंडीशन एप्लीकेबल होगा ये वाले नीचे लोगों के लिए, ओनली वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में होने चाहिए. जैसे पहला कंडीशन क्या है, Indian citizen who leaves India during the relevant previous year as a member of the crew of an Indian ship or for the purpose of employment outside India. तो अगर कोई ऐसा इंडियन, व्हाट हु इज एन इंडियन सिटीजन, जो इंडिया में रहता है, ठीक है, या जिसको सिटीजनशिप है, जो बाय बर्थ यहीं पे पला बड़ा है, तो ऐसा अगर सिटीजन इफ ही इज लीविंग इंडिया फ्रॉम एनी डेट एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तो वो एक इंडियन शिप है जो यहाँ से समझो फॉरेन जा रही है, समझो हमारे एग्जांपल में न्यूजीलैंड ही जा रही है, तो अगर यहाँ से न्यूजीलैंड जाती है वो शिप, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो अगर ऐसा क्रू मतलब क्या होता है, सपोर्ट स्टाफ, तो वो इंडियन शिप जो है जो बाहर जा रही है न्यूजीलैंड, उस शिप में जो क्रू है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उसका ये एक मेंबर है, तो बेसिकली वो उधर वो शिप पे काम के रिगार्डिंग जा रहा है. तो अगर ऐसा बंदा है, इंडियन सिटीजन है, जो कोई इंडियन शिप पे एज अ मेंबर ऑफ क्रू बन के जा रहा है, या तो इफ़ ही इज़ गोइंग आउटसाइड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इंडिया में जॉब्स नहीं मिल रहे, तो मैं न्यूजीलैंड चला गया, न्यूजीलैंड में मेरे को जॉब मिल गया, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया मैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल बी फॉलोइंग अंडर दिस एक्सेप्शन, जहाँ पे मेरे लिए सिर्फ क्या एप्लीकेबल होगा गाइस, बोलो, ओनली 182 डेज विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, only 182 days will be applicable for me in order to see whether I am a resident or a non-resident in India in a given financial year. Second exception, Indian citizen or a person of Indian origin. Indian citizen तो आपको सब मालूम है अभी क्या है, person of Indian origin क्या होता है, नीचे देखो, a person is said to be of Indian origin if he or either of his parents or either of his grandparents was born in undivided India. या तो वो बंदा खुद 1947 के पहले पैदा हुआ, या तो फिर उसके माँ बाप में से कोई भी, मदर या फादर अगर 1947 के पहले पैदा हुए, या तो फिर उनके नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी नाना नानी, दादा दादी, एनीबडी हैज़ बीन बॉर्न इन
अनडिवाइडेड इंडिया, तो फिर उनका ये जो पर्सन होता है वो क्या माना जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो बेटा मॉड्यूल में यहाँ पे देखो, देखने का कितना फायदा होता है आपको, मॉड्यूल इन डेप्थ नॉलेज देता है। दैट इज वन ऑफ द मेन क्रक्स रीजन व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस लेक्चर इज बिकॉज स्टूडेंट्स नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी फॉर एग्जामिनेशंस। आप सम्स कर लोगे लेकिन आपको सम्स रियल लाइफ में हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल ओनली एनहांस व्हाट यू नो, बट व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग देन देयर इज नथिंग टू बी एनहांस्ड। सो यहाँ पे मेरा इंटेंशन इज टू गिव यू ऑल द इन डेप्थ नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सो इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया comes on a visit to India during the relevant previous year। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर रहता है, जैसे न्यूजीलैंड में रहता है, तो वो इंडिया में क्यों आ रहा है, वो इंडिया में आ रहा है फॉर अ विजिट, वो इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है। हो सकता है वो विजिट ट्रैवल के लिए हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से मिलने आया हो सकता है वो कोई फंक्शन अटेंड करने आया हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। विजिट को डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे, टेम्पररी स्टे बोल सकते हो आप, परमानेंट नहीं, टेम्पररी विजिट मतलब टेम्पररी हो गया। ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आता है। तो अगर ऐसा बंदा है जो बाहर रहता है और वो विजिट के लिए आता है, टेम्पररी स्टे के लिए आता है इंडिया में, तो उसके लिए भी क्या देखा जाएगा, सिर्फ 182 डेज आएगा कंडीशन। तो उसके लिए 60, 365 नहीं देखो, सिर्फ 182 डेज अगर क्रॉस हुआ वो ऐसे विजिट में वगैरह आके, तो वो रेसिडेंट बन जाता है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन बोल दिया है ये जो सेकेंड क्लॉज है, सेकेंड क्लॉज में एक एक्सेप्शन डाल दिया है बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट है। However, such person is very important because it is only talking about this particular clause. However, such person having total income other than the income from foreign sources, that is, income which accrues or arises outside India, except income from a business controlled or profession set up in India, and which is not deemed to accrue or arise in India, exceeding 15 lakhs during the previous year will be treated as a resident in India if, अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, क्या पढ़ लिया, ठीक है। अगर ऐसे बंदे जो मैं न्यूजीलैंड से आ रहा हूँ विजिट के लिए, अगर मैं आ रहा हूँ इंडिया में और मेरा इंडियन इनकम कितना होना चाहिए, मेरा इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मेरे को फॉरेन न्यूजीलैंड का इनकम चाहिए नहीं, ठीक है, मेरे को सिर्फ इंडियन इनकम का बात करना है। तो मेरा जो इंडियन इनकम है, मेरा इंडियन इनकम दैट इज इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन सोर्सेज का मतलब आता है जो बाहर के अक्रूज आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट अगर वो फॉरेन सोर्स का जो इनकम है वो कोई बिजनेस या प्रोफेशन जो इंडिया में चल रहा है, इसके वजह से उसको पैसा बाहर मिल रहा है। मतलब अगर वो न्यूजीलैंड में बैठ के वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस इंडिया में इंडिया से कंट्रोल कर रहा है, वो बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, और प्रोफेशन सेटअप इंडिया, तो प्रोफेशन है वो इंडिया से कर रहा है कंट्रोल, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस इंडिया में कर रहा हो, या तो वो प्रोफेशन है सेटअप इन इंडिया जिसके लिए उसको पैसा बाहर मिल रहा है, विच अक्रूज और राइजेस आउटसाइड इंडिया, तो ये पर्टिकुलर इनकम भी इंडिया में आ जाएगी उसकी, इंडियन इनकम में, ठीक है। तो अगर वो बाहर बैठा है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड में बैठ के वो एफडी इंटरेस्ट कमा रहा है न्यूजीलैंड में डाल के, तो वो इनकम यहाँ पे लोगे क्या, नहीं लोगे। लेकिन अगर वो इंडियन इनकम कमा रहे हैं, इंडियन इनकम जैसे इंडियन एफडीज डाला है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में प्रोफेशन सेटअप किया हुआ है, ठीक है, एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज, ओके। तो अगर वो एक्सीडिंग इंडियन इनकम उसका एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज हुआ, वेदर बाय बिजनेस और प्रोफेशन और एनी अदर वे विच अक्रूज और अराइजेस इन इंडिया, तो ऐसे इनकम जो बोला जाएगा तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। तो अगर मैं न्यूजीलैंड में बैठा हूँ, मैं वहाँ से इंडियन इनकम कमा रहा हूँ इन एनी ईयर, ठीक है, अगर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में मैं इंडियन इनकम कमा रहा हूँ मोर देन 15 लाख रुपीज़, बेटा मोर देन एक्सीडिंग, अगर 15 लाख भी है तो भी ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, इट हैज़ टू बी मोर देन 15 लाख रुपीज़। तो मैं बाहर बैठा हूँ, मेरा इंडियन इनकम वेदर बिजनेस, प्रोफेशन, एफडी इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलो आप, अगर इंडियन इनकम मेरा 15 लाख रुपए से ज़्यादा है कोई भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो मैं क्या माना जाऊँगा, रेसिडेंट माना जाऊँगा। इफ द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस अमाउंट्स टू 180 डेज और मोर, ये तो स्टैंडर्ड है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है ना, इसमें तो ऊपर तो जो लिखा है वही है, 182 डेज से ज़्यादा है तो मैं रेसिडेंट बन जाऊँगा। और एक क्लॉज यहाँ पे डाल दिया इज दिस पर्टिकुलर क्लॉज, और he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days। चलो ये भी सेम है ऊपर जैसा ही,
or more and has been in India for at least 120 days in the previous year. तो ये 120 डेज का जो है ये है मेन अमेंडमेंट. ओके, तो अगर ऐसे बंदे जो बाहर बैठ के इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, तो अगर समझो वो रहता है 200 डेज के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट रेसिडेंट बन जाते हैं फर्स्ट क्लॉज में. अगर वो रहता है समझो 150 डेज के लिए तो फिर तो आप बोल दोगे कि सर 150 डेज के लिए तो वो पहले क्लॉज से तो निकल जाएगा क्योंकि लेस देन 182 है. फिर आप ऊपर चेक करने जाओगे यहाँ पे ये वाले क्लॉज में जहाँ पे आप 60 को निकाल के क्या डाल दोगे 120 डाल दोगे. तो अभी वो करंट ईयर के लिए 120 से ज़्यादा है. हाँ है ना सर, डेफिनेटली है, व्हाई नॉट. वो 120 से तो ज़्यादा ही 150 है. और अगर समझो 365 भी टैली हो जाता है आपका, समझो 400 दिन हो गया तो भी वो रेसिडेंट के एम्बिट में आ जाता है डेफिनेटली. तो इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर क्लॉज व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ पुट इज दे वांट टू कर्ब द व्हाट यू कॉल जो टैक्स ब्रैकेट से लोग जा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लॉज. वो एनआरई डिपॉजिट्स कर देते इंडिया में, इंटरेस्ट कमा रहे भले वो एग्जेम्प्ट है बट दिस टाइप ऑफ पीपल आर वैल्यूएबल टू द कंट्री. तो इसलिए उनके लिए 120 डेज का कंडीशन डाल दिया है. अब समझो मैं बोलता हूँ सर मैं इंडिया में था 105 डेज के लिए, तो क्या मैं पहले कंडीशन से बाहर चला गया? ये वाला टाइप का बंदा हूँ मैं, 105 डेज के लिए इंडिया में था आने के बाद, तो क्या मैं 182 से बाहर हो गया? येस एब्सोल्युटली 182 से बाहर हो गया. फिर सेकेंड कंडीशन में क्या मैं 120 से कम था? एब्सोल्युटली. और क्या मैं 365 डेज से भी कम था? एब्सोल्युटली कम था. चलो मैं मानता हूँ 200 दिन था इंडिया में, ठीक है. तो अगर वैसा हो जाता है तो मेरा तो पूरा का पूरा बाहर चला गया यहाँ से, ठीक है. तो अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ से बाहर चला गया तो मैं क्या हो जाऊँगा बेटा? नॉन रेसिडेंट हो जाऊँगा, ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्टैंडर्ड है. जैसे स्टैंडर्डाइज 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर आप एक्सेप्शंस में आते हो तो आपके लिए सिर्फ 182 डेज एप्लीकेबल हो जाते हैं. लेकिन अगर ये जो सेकंड वाले हैं, अगर ये वाले बंदे लोग का 15 लाख से ज़्यादा इनकम होता है तो इनके लिए 182 के साथ वो 60 को भी ट्रांसफ़र कर दिया, क्या बना दिया गया है? 120 बना दिया गया है. ओके, तो इफ़ यू सी स्टैंडर्ड पीपल के लिए दीज 2 कंडीशंस, एक्सेप्शन नंबर 1 एंड 2 इन जनरल के लिए ये 60 को निकाल के 182 डाल दिया, एंड जो एक्सेप्शन है नीचे 120 वाला उसमें ये 182 और ये 120 हो गया है. अभी आपको क्लियरली समझ जाएगा, ठीक है. तो विद दिस अगर मैं बोल सकता हूँ किसी बंदे को इंडिया में नॉन रेसिडेंट रहना है तो उसको कितना दिन में रहना पड़ेगा? अगर वो ऐसे टाइप का बंदा हुआ तो 120 के नीचे रहो. ओके, यहाँ पे ध्यान दो, फॉर एटलीस्ट 120 डेज. तो अगर मैं 119 दिन रहता हूँ तो क्या मैं 119 दिन रहूँगा तो वेदर आई बी अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट. और अगर 120 दिन रहता हूँ तो मैं रेसिडेंट बन जाऊँगा अगर 365 भी फुलफिल हो जाता है तो. स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज नॉट अ स्टैंड अलोन कंडीशन. ये तो हमने अभी पढ़ा ना बेटा. दिस कंडीशन रिक्वायर्स स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस दैट इज एंड 365 डेज इन द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. तो अगर मैं यहाँ पे समझो 105 डेज खेल रहा लेकिन यहाँ पे मैं 417 डेज खेल रहा तो क्या होएगा? तो भी नहीं होएगा बिकॉज ये एंड कंडीशन है. एंड इफ एंड इज नॉट फुलफिल्ड मतलब मैं ये कंडीशन के बाहर चला जाता हूँ, और ये कंडीशन के बाहर चला गया तो मैं नॉन रेसिडेंट. एंड नॉन रेसिडेंट को क्या क्या टैक्स होता है, रेसिडेंट क्या क्या टैक्स होता है वो नीचे पढ़ेंगे हम लोग. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था मार्केट में जब ये आया था, ठीक है. हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर. अभी जो हमने ऊपर पढ़ा क्रू मेंबर वाला पॉइंट, उसके बारे में बात किया गया. क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप्स, मतलब जहाँ पे फॉरेन जाती रहती है जाती आती है, जैसे इंडियन शिप्स भी बाहर जाते हैं तो उसको फॉरेन बाउंड शिप्स बोलते हैं, जाके आते हैं. वेयर द डेस्टिनेशन ऑफ वॉयज इज आउटसाइड इंडिया, जैसे यहाँ से न्यूजीलैंड जा रही है. There is uncertainty regarding the manner and the basis of determining the period of stay in India for an Indian citizen being a crew member. ये ऊपर वाला बंदा तो पता नहीं चल रहा था कि हम लोग कैसे ट्रैक करें, क्योंकि कभी जाती है कभी आती है. इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक द नंबर ऑफ डेज. तो एक सिंप्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ये डिफिकल्टी निकालता हूँ मैं, ये अनसर्टेनिटी निकाल देने के लिए. टू रिमूव दिस अनसर्टेनिटी, एक्सप्लेनेशन 2 to section 6(1) provides that in the case of an individual being a citizen of India एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू, क्या ये सेम है बेटा? इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ क्रू सेम है.
individual being a citizen of India and a member of the crew of the foreign bound ship leaving India, मतलब बेसिकली इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया से बाहर जाके वापस आती है, रहती है, चक्कर मारती रहती है. The periods of stay in India shall, in respect of such voyage, be determined in the prescribed manner and subject to prescribed conditions. Accordingly, the CBDT has wide notification number 70 dated to 2015 said 2015 का 70th नोटिफिकेशन था उस साल का, ऐसे पढ़ते हैं नोटिफिकेशन को. Dated 17th August 2015 inserted Rule 126 in the Income Tax Rules 1962 to compute the period of stay in such cases. According to Rule 126, for the purpose of Section 6(1), in case of an individual being a citizen of India and a member of the crew of a ship, the periods of stay in India shall, in respect of an eligible voyage, not include the following period. मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा टाइम रेंज, ठीक है, कुछ ऐसा टाइम रेंज हम तुम्हारे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया से निकाल ही देंगे, इंक्लूड नहीं, निकाल देने की बात करें तो जो बचेगा वो इंडियन डेज. Period to be excluded, period commencing from the date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for the eligible voyage, and period ending on the date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage. बड़ा सिंपल है बेटा, अगर सिंपल टर्म्स में बोल दूँ ना, ये बंदा जब भी शिप पे चढ़ेगा एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का एक पर्टिकुलर स्लिप रहता है, उसमें जब इसने साइन कर दिया और डेट लिख दिया, वो हो जाता है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप. और जब वो यही चीज़ वापस साइन ऑफ के टाइम पे करता है, वो डेट माना जाएगा ये निकल गया. तो वो रेंज ऑफ जो डेज रहेगा वो आपके इंडियन स्टे से डिडक्ट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया में 365 डेज है, ठीक है. अभी मैंने सपोज ज्वाइन किया जुलाई 31 को, ठीक है, और मैं निकल गया से दिसंबर 31 ले लेते, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए मैं इंडिया में नहीं था. तो वो जो 6 महीने इंटू से 30 दिन पकड़ लेते हैं, 180 डेज सीधा 365 में से लेस हो जाएगा, और जो बचा हुआ दिन रहेगा उसको माना जाएगा इंडियन डेज, इंडिया में रहे हुए दिन. अब वो दिन को आप ऊपर वाले क्लॉजेस में लगाओ, ये वाले क्लॉजेस में लगाओ, ये वाले एक्सेप्शंस में चेक करो, एंड ये सब एक्सेप्शन में चेक करने के बाद डिसाइड करो वेदर ही और शी इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. एक टर्म है यहाँ पे एलिजिबल वॉयज, ठीक है, सच वॉयज लिखा था, यहाँ पर एलिजिबल वॉयज लिखा है. इसका क्या मतलब है? एलिजिबल वॉयज, अ वॉयज अंडरटेकन बाय शिप एंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स ऑफ फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक वेयर फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया हैज इट्स डेस्टिनेशन एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया. बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ से गोवा से निकल के विशाखापट्टनम में जा रही है तो क्या ये पर्टिकुलर रूल एप्लीकेबल होगा? गोवा से निकल के विशाखापट्टनम इंडिया में है ना, वो नहीं है, ठीक है. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया एंड गोइंग टू न्यूजीलैंड. मेरे सिंप्लिसिटी के लिए आई एम कंसिडरिंग न्यूजीलैंड एज द स्टैंडर्ड सिटी ओवर, स्टैंडर्ड कंट्री ओवर हियर, ठीक है, सिंप्लिसिटी पर्पज के लिए और कुछ नहीं. तो वो इंडिया से चालू कर रही है, कोई भी पोर्ट से विशाखापट्टनम से चालू कर रही है और जा कहाँ रही है, न्यूजीलैंड जा रही है. एंड फॉर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया हैज इट्स डेस्टिनेशन इन एनी पोर्ट इन इंडिया. वो न्यूजीलैंड से चालू करके विशाखापट्टनम में आ रही है. और ये क्यों आ रही है? या तो ये पैसेंजर्स को लेके जा रही है, या फ्रेट, जैसे फ्रेट मतलब क्या बोलूँ, जैसे महंगी गाड़ियाँ, ओके, बिग कंटेनर्स रहते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें गुड्स लेके जाते हैं. तो अगर ऐसे सब कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा एलिजिबल वॉयज. और ऐसे एलिजिबल वॉयज में ऐसा वाला बंदा मिल गया तो उसके लिए इंडियन डेज कैसे कंप्यूट करना है, ये रूल नंबर 126 आपको क्लियरली बताता है. सो आई हैव taught you everything starting from residential status including the exceptions as well as your rule number 126. अब इसके बेसिस पे यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है, we'll answer that. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. Illustration 1. Mr. Anand is an Indian citizen and a member of the crew of a Singapore bound Indian ship. मतलब सिंगापुर इंडिया की शिप है. Engaged in the carriage of passengers in international traffic. Departing from Chennai port on 6th June 2024. सिंपल है, सब जो आपको हाईलाइट करना है उसको कर लो. क्या इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल था ये? यस. मेंबर ऑफ द क्रू? यस. फॉरेन बाउंड शिप? यस. कैरेज ऑफ पैसेंजर्स? यस. इंटरनेशनल ट्रैफिक? यस. मतलब इंडिया के अंदर नहीं है, ये बस सिंगापुर है ना, सिंगापुर एंड इंडिया इज डिफरेंट.
From the following details for previous year 24-25, determine the residential status of Mr. Anand for AY 25-26, assuming that his stay in India in the last 4 previous years preceding previous year 24-25, that is current previous year, is 400 days. वेरी सिंपल है बेटा, ठीक है. जैसे मैंने आपको 365 180 लेस करके बैलेंस निकालो, वही चीज़ यहाँ पे देखो क्या दिया है. डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद 6 जून 2024 एंड कभी साइन ऑफ किया इसने 9 दिसंबर 2024. तो अभी चालू करते हैं. देखो मैं आपको पढ़ के दिखा दूँ क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ डेज मैं मैन्युअली कर नहीं सकता, मेरे पास फिलहाल कैलसी अभी यहाँ पे नहीं है मैनुअल कैलकुलेशन के लिए. आई विल सेव योर टाइम एंड वील जस्ट रीड दिस. But when you are calculating, please calculate these days and this day should tally with whatever is given over here. और एक और चीज़, ये जो शिप वाला बंदा है, ये जिस दिन साइन इन करता है और जिस दिन साइन ऑफ करता है, क्या वो 2 दिन आपको इंक्लूड करना रहता है? बेटा नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड बोला है डेट एंटर्ड इन CDC एंड डेट एंटर्ड इन CDC साइनिंग ऑफ एंड साइनिंग इन. बट अदरवाइज जैसे हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था, ये देखो कहा गया हो, ये देखो, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ डेज इन इंडिया बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल आर कंसिडर्ड. बट इन रूल नंबर 126 जो CDC वाला है उसमें ये दिन एक्सक्लूड किया जाता है. म्हणजे ये है 6 जून और 9 दिसंबर आपका एक्सक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है. In this case, since Mr. Anand is an Indian citizen and leaving India during previous year 24-25, as a member of the crew of the Indian ship, he would be a resident in India if he stayed in India for 182 days or more. Very simple, ठीक है, क्योंकि ये तो फुलफिल करता है ना, उसके लिए सिर्फ 182 डेज का ही कंडीशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है. The voyage is undertaken by an Indian ship engaged in the carriage of passengers in international traffic originating from port in India, that is Chennai port, and having its destination outside India, Singapore port. Hence, the voyage is an eligible voyage for the purpose of Section 6(1), Rule 126. Therefore, the period commencing from 6 June and ending on 9 December, being the dates entered into CDC in respect of joining the ship and signing off from the ship by Mr. Anand, an Indian citizen who is a member of the crew of the ship, has to be excluded for computing the period of his stay in India. अब देखो कभी निकला हो 6 जून को निकला, तो यहाँ पे जो जून में है, जून में कितना दिन होता है? 30 माइनस 6 31, एक सेकेंड, 25 एक्सक्लूड किया है ना. हाँ तो ठीक है, एक्सक्लूड ही तो किया ना, यहाँ पे 25 आएगा, 25 प्लस जुलाई, एंड जिस दिन वो वापस आए वो दिन भी आपका एक्सक्लूडेड हो गया, ठीक है. ये आपका दोनों एक्सक्लूड, तो 6 को निकल रहा हो, तो 6 को निकला मतलब सिर्फ 5 दिन एक्सक्लूड किया गया है. 6 को इंडिया में इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने, ठीक है. 6 इज नॉट इंक्लूड इंडिया, दैट इज वाई ओनली 25 डेज यहाँ पे लिया है. Consequently, Mr. Anand's period of stay in India during the previous year 24-25 would be 178 days, that is 365 minus 187. Since his period of stay in India is less than 182, he is a non-resident for AY 25-26. Very simple question, ठीक है. आपको सिर्फ इंश्योर करना है कि उसको एक्सक्लूड क्या करना है, आपको दोनों दिन एक्सक्लूड करना है आपको. जैसे जिस दिन वो जा रहा है वो भी एक्सक्लूड करना है, तो 6th डे पे वो जा रहा है, ठीक है, तो आपको 5th डे तक ही लेना है. 25 एक्सक्लूड कर देना आपको, ठीक है, एंड हैव टू बी एक्सक्लूडेड. 9th को वापस आए तो 9th को भी ये एक्सक्लूडेड ही माना जाएगा. तो दिस इज योर फर्स्ट इलस्ट्रेशन, वेरी सिंपल. आप कैलकुलेशंस चेक कर लेना आप, ओके. तो आप ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा. इसमें क्लियरली 187 डेज बोला है, तो वो निकाल दो तो बचा वो 170 डेज आते हैं, 178 विच इज लेस देन 182 एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ओके, रेसिडेंट बन जाएंगे. अब रेसिडेंट जो बन गए हैं वो आइदर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, करेक्ट. ये तो आप लोगों ने सब पढ़ते टाइम पढ़ा होगा, बट मेरा आइडियोलॉजी इज टू इंश्योर दैट योर कंसेप्ट्स आर रोबस्ट, क्लियर होने चाहिए. ओनली इंडिविजुअल्स एंड HUF कैन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. ऑल अदर क्लास ऑफ assets can either be a resident or non-resident. A not ordinary resident person is one who satisfies any one of the conditions specified under section 6(6). ये conditions दिए हुए. If such individual has been a non-resident in India in any 9 out of the 10 previous years preceding the relevant previous year, पिछले 10 सालों में से preceding मतलब से मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ,
तो फाइनेंशियल ईयर 2021 को छोड़ के पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 9 फाइनेंशियल ईयर्स मेरे को इंडिया में नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए क्या हो जाता हूँ, रेसिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इफ सच इंडिविजुअल हैज during the 7 previous years preceding the relevant previous year been in India for a period of 729 days or less, अगेन फाइनेंशियल ईयर 2021 से आप पीछे जाओ 7 साल, वो 7 साल का पीरियड मैक्सिमम इंडिया में 729 डेज और लेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब 728 पकड़ लो सेफ साइड के लिए। ठीक है, 729 डे और लेस रहना चाहिए बोलते हैं, तो 730 के तो नीचे रहना चाहिए। 729 डेज रहो या तो उसके नीचे रहो तो आप सेफ रह जाओगे। तो अगर ऐसे हो जाते हो तो आप RNOR बन जाते हो। If such individual is an Indian citizen or a person of Indian origin who, being outside, comes on a visit to India in any previous year, having total income other than income from foreign sources, that is, income which accrues or arises outside India, other than income derived from business controlled in India or a profession set up in India, and which is not deemed to accrue or arise in India, exceeding 15 lakhs during the previous year, who has been in India for 120 days or more but less than 182 days during that previous year. Very simple, यहाँ पे क्या बोल दिया है, अगर ऐसे बंदे जो 150 डेज के लिए आते हैं इंडिया में और ये 15 लाख से ज़्यादा करते हैं, अगर आप उनको रेसिडेंट बना देते हो तो आप उन पर बर्डन डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि नीचे हम पढ़ेंगे रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो ऐसा बंदा जस्ट बिकॉज ही इज पुट कीपिंग हिज डिपॉजिट्स ओवर हियर एंड अर्निंग मनी फ्रॉम इंडिया, यू आर कंप्लीटली डिस्करेजिंग हिम टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। आप उसको भगा दोगे इधर से, फिर वो इंडिया में कुछ डिपॉजिट्स नहीं रखेगा, आपको फॉरेन करेंसी नहीं आएंगे, फॉरेन करेंसी नहीं आएगा, आपका देश का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए बोल दिया है ऐसे बंदे जो रेसिडेंट बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, उनको हम बना देंगे RNOR। फिर इफ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन हु इज डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 61A। अब 61A क्या है यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे भी बोल दिया कि 61A इज अ डीम्ड रेसिडेंट विच टेल्स कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो बाहर रहता है, वो भी इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस। जैसे दुबई, आप दुबई में रहते हो, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन आप इंडिया में भी पैसा रख के कमा रहे हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप इंडिया में आते ही नहीं हो तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे, है कि नहीं। आप दुबई में बैठे हो, आप इंडिया से मस्त पैसा कमा रहे हो और आप इंडिया आते ही नहीं हो, तो आप तो 182 के नीचे चले जाओगे, तो आप तो नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। तो आप यहाँ पर भी ज़्यादा टैक्स नहीं दे रहे हो, आप वहाँ पर भी टैक्स नहीं दे रहे हो, तो दिस इज अफेक्टिंग रेवेन्यू इन जनरल ऑफ द कंट्रीज। इसलिए बोला है ऐसे लोगों को हम डीम्ड रेसिडेंट बना देंगे। और डीम्ड रेसिडेंट मतलब क्या होता है, RNOR। A deemed resident under section 61A is always an RNOR। ये भी अमेंडमेंट है बेटा, 61A, सेक्शन 61A वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो पढ़ लेना बराबर से, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, विजिट्स इंडिया फॉर 100 days in every financial year। This has been his practice for the last 10 financial year। पिछले 10 साल में हर बार इंडिया में 100 दिन के लिए आते हैं। फाइंड आउट इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। तो ठीक है, चालू करते हैं। करंट ईयर में कितना आए हैं वो, क्या वो 182 से ज़्यादा आए हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको विद द सोल्यूशन पढ़ाता हूँ ताकि आपको फ्लो ईजी पड़ जाए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस करते हैं। सबसे पहले इंडिया में करंट ईयर कितने थे, वो 100 दिन के लाए थे। अब उसका इंडिया में क्या वो पहले कंडीशन 182 से कम है, यस एब्सोल्युटली कम है, तो क्या आप सीधा नॉन रेसिडेंट बना लोगे, नहीं नहीं, कंडीशन नंबर 2 बाकी है उसका 2। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है, कंडीशन नंबर 2 ये बोलता है कि आपको पिछले 4 सालों में यू शुड बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days एंड इन इंडिया यू शुड बी एटलीस्ट फॉर 60 days इन दैट ईयर। सिंपल बेसिक कंडीशन। तो पिछले 4 साल में प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर फॉर 24-25 100 into 4 400 days। ठीक है, ये आपको दे दिया यहाँ पे टोटल, एंड करंट ईयर में तो 100 दिन है ही। तो क्या मिस्टर ब्रेटली रेसिडेंट बन जाते हैं, यस एब्सोल्युटली रेसिडेंट बन जाते हैं। किस तरह के रेसिडेंट बनेंगे वो हम सेकेंडरी देखते हैं। मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एंड, ठीक है, for a period of more than 365 days during the 4 immediately preceding previous years. Therefore, since he satisfies one of the basic conditions under section 61, he is a resident for AY 25-26.
अब हम जाते हैं, ये ROR बनेगा कि RNOR बन जाएगा। एक चीज़ याद रखना गाइस, अगर RNOR बन जाता है तो आपको ROR चेक करने की जरूरत नहीं है, और ROR बन गया तो RNOR चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक ही होएगा। तो इसलिए मेरी आपसे सजेशन है कि आप RNOR का कैलकुलेशन देख लो। RNOR में अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो फिर आपको बाकी ROR चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो RNOR में सबसे पहले क्या है, अब पिछले 10 सालों में से 9 साल में नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। क्या हमारे पास इतना डेटा दिया हुआ है कि आप पिछले 10 सालों में से जाके हर 9 साल में क्या रेसिडेंशियल डेटा से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो पहला कंडीशन ही निकल गया आपका। लेकिन पिछले, अभी करंट ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में ही शुड बी इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस, वो तो निकाल सकते हैं। 7 साल का है ना, 700 दिन आ गया, 700 दिन, तो ये तो फुलफिल हो जाता है क्लियर कट। तो ये फुलफिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, 729 और लेस हो गया, तो ही कंप्लीटली फुलफिल्स RNOR का कंडीशन। Since his period of stay in India during the past 7 previous years is less than 730 days, he is a not ordinary resident during AY 25-26. Therefore, Mr. Bradley is a resident but not ordinarily resident during the previous year 24-25, relevant to assessment year 25-26. An individual not being an Indian citizen would be not ordinary resident if he satisfied in one of the previous, ये आपको दिखा दे, लिख के दे दिया आपको, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। वो सेकेंड क्लॉज में फिट हो जाता है, इसलिए वो RNOR बन गए हैं। What is the second question? Would your answer change if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents Australian cricket team? तो श्रीनाथ क्या है, इंडियन सिटीजन है, वो ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड करते हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए करते हैं। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू मिस्टर श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, he would be treated as a non-resident in India irrespective of his total income, excluding income from foreign sources, since his stay in the India in current financial year is in any case less than 120 days. ठीक है, क्या है, इंडियन सिटीजन है। अभी इंडियन सिटीजन मतलब क्या बोल दिया यहाँ पे, इफ इज एन इंडियन सिटीजन, अगर वो 100 डेज के लिए इधर आता है। हाँ बेटा, इंडिया में अभी श्रीनाथ आ रहे हैं, श्रीनाथ अगर इंडिया में आ रहे हैं तो सबसे पहले ये क्यों आ रहे हैं, वाई इज ही कमिंग, ठीक है, वो इंडिया में आ रहे हैं, विजिट के लिए आ रहे हैं, एंड इंडिया हु रिसाइड ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट, एंड ये क्यों आ रहे हैं, विजिट के लिए आ रहे हैं। तो अभी इंडियन सिटीजन बोल दिया, इसीलिए आपका मेन पर्टिकुलर लॉ बदल जाता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं, ओके, इफ वी गो लिटिल बिट अप एंड वी सी द एक्सेप्शंस, क्या लिखा है यहाँ पे, इंडियन सिटीजन हु बीइंग आउटसाइड कम्स टू विजिट। तो दैट इज द पर्पस व्हाई दिस पर्टिकुलर लॉ, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन मेड। तो अगर इंडियन सिटीजन जो विजिट के लिए आ रहे हैं इंडिया में फॉर दिस पर्टिकुलर डेज, तो क्या उसके लिए हो जाता है, सबसे पहले एक्सेप्शन नंबर 1 में आ जाते हो, जहाँ पे क्या बोल दिया है कि ऐसे बंदों के लिए सिर्फ 182 डेज ही एप्लीकेबल होएगा, ठीक है, क्योंकि 60 भी आपका जब रहता है 182 बन जाता है। तो ये तो 100 डेज के आए हैं, तो ये तो वैसे ही नॉन रेसिडेंट बन गए। बट आगे बोल दिया है कि अगर हम और आगे जाके देखें कि वेदर मिस्टर श्रीनाथ इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमाता है इंडियन इनकम, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या इसके लिए कितना हो जाएगा, 60 इंस्टेड ऑफ 182 इट विल बिकम 120। अगर 120 हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे भी 100 दिन के लिए आया है। तो अगर वैसे भी 100 दिन के लिए आया है बेटा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू मिस्टर श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, he would be treated as a non-resident in India irrespective of his total income, excluding income from foreign sources, since his stay in India in the current financial year is in any case less than 120. अगर वो इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसमें 120 लग जाता है ना, लेकिन वो भले ही 15 लाख से ज़्यादा कमाता है लेकिन फिर भी वो 100 दिन से कम है। तो अगर वो 100 दिन से ही कम हो रहा है, अगर 120 से ही कम हो रहा है, तो फिर उस पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Only if people are earning more than 15 lakhs, that 60 days becomes 120 and not 182 in order to plunge in the gap. But in this case, since he is only for 100 days, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखो, question number 3, what would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days every year including previous year 24-25? अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, 120 days होता, तो आप दो आंसर दे सकते हो। जैसे अभी 120 में है, अगर वो 15 लाख से ज़्यादा नहीं कमाता है, ठीक है, तो फिर तो वो क्लियर कट नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, उसके लिए सिर्फ 182 डेज एप्लीकेबल होगा।
और अगर वो 15 लाख से ज़्यादा कमाता है तो 120 डेज और मोर तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। और रेसिडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, RNOR, ठीक है, ही विल बिकम एन RNOR। पढ़ते हैं। In this case, if Srinath's total income excluding income from foreign sources exceeds 15 lakh, case 1 बोल दिया, he would be treated as resident but not ordinary resident in India since his stay in India is for 120 days in the previous year 24-25 and 480 days, हाँ ये भी आपको देखना पड़ेगा, 120 into 4 which is more than 365 in the immediately preceding 4 preceding years. If his total income excluding foreign sources does not exceed 15 lakh, he would be treated as non-resident in India, क्योंकि आपको फिर 120 days का कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होता है, वो आपको 60 will still be 182 एंड 182 ही आप फुलफिल नहीं कर रहे हो बिकॉज आप 120 डेज के लिए हो. Does not exceed 15 lakh, he would be treated as a non-resident in India since his stay is less than 182 days. Simple. अभी वो 120 डेज के लिए आया है, वो क्वेश्चन में बोला है, बट अगर उसका 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 120 विल बी कैप्चर्ड एंड वो रेसिडेंट बन जाएगा. और अगर 15 लाख से इनकम कम है तो 120 इज एनी विच वेज लेस देन 182, तो फिर वो वैसे भी नॉन रेसिडेंट बन जाएगा. ठीक है, क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको एक पूरा स्कोप पढ़ाया था ऊपर का. ठीक है, बिकॉज विदाउट आपको कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आएगा ही नहीं तो ये आप कभी क्वेश्चन एंजॉय नहीं कर पाओगे बेटा. यू हैव टू एंजॉय द क्वेश्चन गाइस. Illustration 3. Mr. B, a Canadian citizen, comes to India for the first time during previous year 2021. During financial year 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 and 24, 25. He was in India for 55, 60, 90, 150 and 70 days respectively. Determine his residential status for AY 25, 26. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ आपको. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, सबसे पहले करंट दो चीज़ देखना पड़ता है आपको किसी को भी इंडिया में रेसिडेंट बनाने के लिए, 182 एंड 365 एंड 60. फिर एक्सेप्शंस को बिठाओ अगर क्वेश्चन में दिया है तो. अभी वो क्या आ रहे हैं, इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, क्या ये ऐसा कुछ है एक्सेप्शन यहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं है. क्या विजिट बोला है, क्या क्रू मेंबर बोला है, कुछ भी नहीं बोला है. क्या वो 15 लाख का कंडीशन बोला है? नथिंग इज टोल्ड. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर बी वॉज इन इंडिया फॉर 70 डेज. ठीक है, एंड ड्यूरिंग 4 ईयर्स, सबसे पहले 70 डेज के अगर इंडिया में था तो क्या वो लेस देन 182 था? एब्सोल्युटली था, तो उधर से तो निकल गया. ही इज आउटसाइड दैट फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं, 60 एंड 365. तो पिछले 4 साल में ही वॉज 355 डेज विच इज लेस देन 365. बट करंट डेज में 60 से ज़्यादा था, लेकिन कंडीशन क्या है, क्यूमुलेटिव है एंड है, तो वो कंडीशन भी फुलफिल नहीं करते हैं. Thus he does not satisfy the basic condition under section 6(1) and therefore he is a non-resident for previous year 24-25. Now HUF, Hindu Undivided Family, सेकेंड कंसेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे? अगर एक HUF जो फॉर्म होता है बेटा, HUF, an HUF would be a resident in India if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India. मतलब अगर 100% भी इंडिया में अफेयर्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, या तो 1% भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, तो क्या होगा, HUF रेसिडेंट हो जाएगा. और अगर 0% कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट. देखो यहाँ पे लिखा है, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया इट वुड बी केस ऑफ नॉन रेसिडेंट. और ऊपर क्लियरली बोला था कि आपका जो इंडिविजुअल रहता है, कहाँ गया हो, एक सेकंड, सी ओनली इंडिविजुअल्स एंड HUFs कैन बी आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. ऑल अदर क्लासेस कैन बी आइदर अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. मतलब ओनली इंडिविजुअल्स एंड HUF को आप क्लासीफाई कर सकते हो RNOR ROR में, बाकी किसी को भी क्लासीफाई नहीं कर सकते. जैसे फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म रहेगा तो उसको आप कर सकते हो क्या? नहीं, वो इधर इंडिया में फॉर्म हुआ है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ है, तो डेफिनेटली वो इंडियन फर्म, इंडियन रेसिडेंट हो गया. अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब मैं जिधर बैठ के धंधा करता हूँ या फिर क्या करता हूँ, मैं डे टू डे अफेयर्स मैनेज करता हूँ, मैं पासबुक अपडेट करता हूँ, फिर एडमिन काम करता हूँ, फाइल्स अरेंज करता हूँ, क्या करता हूँ. व्हाट इज कंट्रोल मैनेजमेंट? द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 6 refers to the central control and management and not to the carrying on of day-to-day business by servants, employees or agents. ऑफिस आके ऑफिस खोलना, ऑफिस में कंप्यूटर ऑन करके 3-4 ईमेल लिखना, ठीक है, डे टू डे काम करना, फाइल अरेंज करना, बिल्स बनाना, इनवॉइस देना,
पेमेंट करना बैंक में से, क्रेडिट डेबिट, इसको आप बोलोगे डे टू डे अफेयर्स। इसको आप एम्प्लॉयज़ करते हैं, सर्वेंट्स करते हैं, एजेंट्स करते हैं। आप सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करो, मतलब यू विल बी टेकिंग द एक्चुअल बिजनेस डिसीजंस कि मेरे को ये पर्टिकुलर जगह पे ब्रांच खोलना है, बड़ा डिसीजन है, या मेरे को ये पर्टिकुलर ब्रांच शट डाउन करना है, बड़ा डिसीजन है। कंट्रोल मैनेजमेंट मीन्स डी फैक्टो कंट्रोल। डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट, मतलब ट्रूएस्ट सेंस। डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नॉट मेयरली हैविंग द राइट टू कंट्रोल मैनेज। मेरे एम्प्लॉय को बोला तू देख ले भाई क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है क्या एम्प्लॉय का बिजनेस हुआ हो? हाँ, अगर बिजनेस मैंने किसी को कंट्रोल करने दिया है, मैनेज करने दिया, एक मैनेजर हायर करता हूँ, क्या मैनेजर इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे डी फैक्टो कंट्रोल इज विद मी एंड नॉट विद दैट मैनेजर। सो आई एम हैविंग द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड जिधर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जहाँ से हो रहा है वो देखना पड़ता है। तो अगर HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा भी, तो HUF रेसिडेंट बन जाएगी। अगर कुछ भी इंडिया से नहीं होता, सब बाहर से कंट्रोल मैनेजमेंट है, तो HUF नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं ये। द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, येट इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में बी होली विद इन इंडिया। Therefore, control and management of business is said to be situated at a place where the head and brain of the adventure is situated. What a beautiful line. देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ ICAI का मॉड्यूल पढ़ो, बिकॉज समटाइम्स रियली वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, वेरी वेल ड्राफ्टेड वर्डिंग्स। Merely because the family has a house in India where some of the members reside in the previous year does not constitute the place that as the seat of control and management of the affairs of HUF, unless important decisions concerning the affairs of the HUF are taken at that particular place. The place of control may be different from usual place of running the business and sometimes even the registered office of the SSC. This is because the control and management of a business need not necessarily be done from the place of business or from the registered office of the SSC. जरूरी नहीं है किधर भी बैठ के करो। But control and management do imply the functioning of the controlling and directing power at a particular place with some degree of permanence. Permanence मतलब establishment, एक होल्ड होता है, वहाँ से अगर कर रहे हो तो फिर उसको कंट्रोल मैनेजमेंट वो प्लेस से माना जाएगा। अब जैसे मैंने ऊपर बोला गाइस, HUF जो होता है वो आइदर ROR हो सकता है, RNOR हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट HUF satisfies both the following additional conditions as applicable in case of individual, then resident HUF will be treated as resident and ordinary resident, otherwise it will become RNOR. तो एक बार अगर HUF रेसिडेंट बन गया बेटा, तो वो जो HUF का कर्ता जो है, जो मेन पर्सन होता है HUF का, ठीक है, आप लॉ में पढ़ोगे कर्ता कौन होता है वगैरह। कर्ता इज बेसिकली द मेन पर्सन ऑफ द HUF, ठीक है, जो हेड होते हैं। तो वो कर्ता अगर वो ROR है तो HUF ROR, अगर कर्ता RNOR है तो HUF RNOR। वेरी सिंपल, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। The business of HUF is transacted from Australia and all the policy decisions are taken there. Very good. Mr. E, the Karta of the HUF, who was born in Kolkata, visits India during previous year 24-25 after 15 years. He comes to India on 1/4/2024 and leaves for Australia on 1/12/2024. Determine the residential status of Mr. E and HUF. पहले तो आप HUF का बोल दो, ठीक है। मैं कहा पहले HUF किधर है, पहले HUF का देखते हैं, बहुत सिंपल है। HUF किधर है, ट्रांजैक्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पॉलिसी, एक सेकंड, सॉरी, और पॉलिसी डिसीजंस भी HUF के वहीं से लेते हैं। Since the business of the HUF is transacted from Australia and policy decisions are taken there, it is assumed that control management is in Australia. That is, the control management is wholly outside India. बेटा wholly is very very important, ठीक है। 1% भी अगर इंडिया में होता ना तो लॉ उसको रेसिडेंट बना देती है। Wholly outside India, wholly outside India. Therefore, HUF is a non-resident for the previous year 24-25. Okay, HUF non-resident बन गया। अब मैं बोलता हूँ कर्ता की सबसे पहले बात करते हैं। कर्ता का इंडिया में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 कितना था, अब वो ऐड करो, कब आ रहा है, 1 अप्रैल को आता है, अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर तक पकड़ो। अब ये जो 1 दिसंबर है ये इंक्लूड करोगे क्या, नहीं, डेफिनेटली करोगे, ठीक है। ये आप जब भी आया जैसे अप्रैल में 30 दिन है तो पूरा 30 दिन इंडिया में था और पूरा एक दिन भी इंडिया में ही कंसिडर होएगा। तो ई कितना था, 245 डेज के अंदर, तो ये तो सीधा 182 के ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। देयरफॉर ही इज अ रेसिडेंट। आपको कोई और चीज़ देखना है क्या, कुछ और चीज़ देखने की जरूरत नहीं, और कुछ विजिट के लिए किधर विजिट बोला है, विजिट्स बोला है,
तो विजिट बोला है तो सिर्फ 60 वाला भी तो है, 182 हो जाते हैं, तो आपका बेसिकली ओनली 182 कंडीशन इज लेफ्ट। सॉरी। अब ROR या RNOR देखते हैं। तो अभी मेरे को बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर 15 साल। तो 15 साल मतलब पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में इंडिया आया ही नहीं है। तो अगर इंडिया आया ही नहीं है तो हर साल नॉन रेसिडेंट ही होने वाला है ना, वो तो लेस देन 182 ही रहेगा। तो अगर वैसा हो जाता है तो एक क्लियर कट RNOR हो जाता है, पढ़ लो। Therefore, he is a resident. However, since he has come to India after 15 years, he does not satisfy the condition for being ordinary resident. Therefore, the residential status of Mr. E for the previous year 24-25 is a resident but not ordinary resident. अगर मैं यही चीज़ बोलता हूँ कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंडिया में होता है HUF का, तो वो भी HUF रेसिडेंट हो जाता है, और HUF किस तरह का रेसिडेंट होता है, RNOR हो जाता है। वही लिखा है, पढ़ लो। If the control management is in India, even partially, then the HUF would be resident. In such a case, the residential status of HUF would be resident but not ordinary resident. क्यों? क्योंकि करता stay in India is less than 70 days in 7 previous years, immediately preceding the relevant previous year. Less than 730 बोलो, non resident बोलो, पिछले 9 सालों में सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, तो this was your illustration number 4. Now moving ahead. Now we have to see scope of total income. Scope of total income section number 5. Section 5 क्या बोलता है, scope of total income. एक scope मतलब इंडिया में एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को क्या क्या इनकम पे टैक्स लगेगा, एक रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को किस किस तरह के इनकम पे टैक्स लगेगा, और एक नॉन रेसिडेंट को किस तरह के इनकम पे टैक्स लगेगा, वो यहाँ पे बताया है। The total income of an ROR would include, under section 5(1) consist of income received or deemed to be received in India, income accrued or arise or deemed to accrue or arise in India, and income which accrues or arise outside India even if it is not received or brought into India during the previous year. देखो बेटा सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, there are 5 types of stuffs over here. ठीक है, इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी इनकम रिसीव्ड, सबसे पहले इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, एंड इनकम अक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सो 5 टाइप्स ऑफ स्टफ्स आते हैं। ये पांचों तरह के इनकम बेचारे ROR के लिए टैक्सेबल इन इंडिया है, 100 and 1050%। ठीक है, टैक्सेबल है। In simpler terms, an ROR has to pay tax on total income accrued or deemed to accrue, received or deemed to be received or in or outside India during the relevant previous year. बाहर उसने FD रखा है, उसको 50,000 रुपये मिला, उस पर भी टैक्स भरेगा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि वो ROR है। Global income is taxable for an ROR. Global income. Next we come to RNOR. RNOR की बात करते हैं। Under section 5(1), the total income of an RNOR would consist, सबसे पहला वाला आपका इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम अक्रूड और डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम अक्रूड और डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, एंड पांचवा जो चीज़ है, इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इवन दो इट अक्रूज आउटसाइड इंडिया। तो जो बाहर की इनकम है, पांचवा है इनकम अक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया, ये वाला पांचवा इनकम जो है आपका इनकम अक्रूड और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया वाला है, उसमें सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम ही है, और ऐसा बिजनेस प्रोफेशन जो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। तो बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया से बाहर कंट्रोल किया जा रहा है, और उसका इनकम भले आपको बाहर मिल रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल अदर इनकम विच इज नॉट रेसिडेंट इंडिया, डीम टू रेसिडेंट इंडिया वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। जाओ मजे करो, नॉन रेसिडेंट तो और भी मजे। A non-resident's total income under section 5(2) includes income, सिर्फ पहले 4 है, income received, deemed to be received, accrued, deemed to accrue arise India, बस ये 4 ही है, पढ़ लो। received, deemed to be received, accrued और deemed to accrue arise in India. I really want you all students to see what is income accrue arise और deemed to accrue arise, क्योंकि उस पर section 9 भाषण लिखता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो भाषण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो उसको प्रॉपरली पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस में आपको ट्विस्ट कर सकते हैं वो लोग। रिसीव तो ठीक है, आपको इंडियन बैंक में है। डीम टू बी रिसीव सेक्शन 7, उसके 3 क्लॉजेस दिए, वो आते तो हो गया। अक्रू अराइज मतलब जिसका जन्मभूमि इंडिया है। ठीक है, ऐसा इनकम जिसका जन्मभूमि, जिसका जन्म स्थान इंडिया से ही आ रहा है, वरना ये इनकम का अस्तित्व ही नहीं होता था, तो अक्रू अराइज हो जाता है। डीम टू अक्रू अराइज मतलब क्या, सेक्शन 9 में जाके उसके क्लॉजेस दिए हैं। ठीक है,
ये एक आपको चार्ट दिया है, ठीक है, एंड ये चार्ट में क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव तीनों के लिए टैक्सेबल, इनकम अक्रूड और डीम्ड टू अक्रू और राइज तीनों के लिए टैक्सेबल, इनकम अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, तो ये बेचारे के लिए तो सब कुछ है टैक्सेबल। ये भाई साहब के लिए सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन बाहर चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, ठीक है। ओनली इफ सच इनकम इज फ्रॉम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप इंडिया, अगर मतलब बिजनेस इंडिया से हो रही है उसकी, ठीक है, एंड उसको पैसा बाहर मिल रहा है, प्रोफेशन इंडिया में कर रहा है, पैसा बाहर मिल रहा है, तो ओनली बिजनेस प्रोफेशन जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, RNOR हो, अगर आप RNOR हो और आपको पैसा जो बाहर मिल रहा है वो इंडियन बिजनेस या इंडियन प्रोफेशन यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है इसलिए मिल रहा है तो मिलेगा। हाँ, FD इनकम है बाहर की, बख्श दिया जाओ, डिविडेंड इनकम है बाहर की, बख्श दिया जाओ। एंड ऐसा अगर ये भाई साहब के पास है तो इसको तो वैसे भी बिजनेस वाला भी टैक्सेबल नहीं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए सब कुछ एग्जेम्प्ट है। तो नॉन रेसिडेंट को अगर बाहर मिल रहा है, ठीक है, वो इंडियन बिजनेस से मिल रहा है, इंडियन प्रोफेशन से मिल रहा है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट है, तो क्या उसके टैक्सेबल होगा वो चीज़? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिकॉज उसको इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड हो जाता है, लेकिन इंडिया में उसको पैसा नहीं मिल रहा है नॉन रेसिडेंट को। तो अगर इंडिया में पैसा नहीं मिल रहा है, बाहर ही है उसका सब कुछ, तो छोड़ दिया। तो बाहर जो इनकम मिल रहा है, अगर बिजनेस या प्रोफेशन से मिल रहा है, इंडिया में सेटअप किया हुआ वैसे एस्टैब्लिशमेंट से बाहर पैसा मिल रहा है, तो भी उसको इंडिया में टैक्स नहीं है क्योंकि वो एक नॉन रेसिडेंट होता है। इलस्ट्रेशन 5 यही चीज़ के बारे में बताता है, वेरी गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। From the following particulars of income furnished by Mr. Anirudh pertaining to the year ended 31st March 25, compute the total income for him if he is ROR, RNOR, NR। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। तो ये STCG है। सबसे पहले मेरे को बताओ, क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है? मैं थोड़ा पीछे बैठता हूँ, क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है? नहीं, जर्मनी। क्या ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया? नहीं, क्योंकि वो तो सेक्शन 7 में ऐसा कुछ है नहीं, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। अक्रूड और अराइज इन इंडिया, क्या ये जो STCG है इसका जन्म स्थान, जन्मभूमि इंडिया है? एब्सोल्युटली यस। तो अगर ये थर्ड कंडीशन में आता है, तो थर्ड कंडीशन मतलब ये वाला पार्ट, तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है? नहीं। क्या ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है? नहीं। क्या ये अक्रूड और अराइज इन इंडिया है? क्या ये जो डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी मिल रहा है इट इज रिसीव्ड इन जापान? तो ये वो भी नहीं है। क्या ये डीम टू अक्रू अराइज है? वो भी नहीं है। तो क्या है ये फिर? ये तो बाहर वाली इनकम हो गई पूरी इसकी, और बाहर वाली इनकम अगर हो जाती है तो ये किसके लिए टैक्सेबल है? ये अक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया है कम्प्लीटली, रिसीव्ड इन जापानीज, रिसीव्ड इन जापान, तो रेसिडेंट तो गया बेचारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यस है। क्या है बिजनेस प्रोफेशन से? डिविडेंड है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, तो 10,000 डैश डैश, ठीक है। नॉन रेसिडेंट को तो वैसे ही बाहर की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है बेटा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन द बैंक इन लंडन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स। अब ये जो रेंट है प्रॉपर्टी, लंदन की प्रॉपर्टी, ये रेंट लंदन में मिल रहा है उसको, क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया? डीम टू रिसीव्ड अक्रूअराइज इन इंडिया? डीम टू अक्रूअराइज इंडिया नहीं है, ये तो कंप्लीट रिसीव्ड आउटसाइड हो गया। तो आउटसाइड हो गया तो भाई साहब ये ROR तो गया, वो तो वैसे भी मर गया। RNOR के लिए नहीं है, NR के लिए भी नहीं है। अब आप पूछोगे 52,500 कैसे आ गया? ये तो ग्रॉस हो गया ना, सेक्शन 24 में जाओ IHP का, वहाँ पे 24A में आपको डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 24, ठीक है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाला है, मतलब रेंट रिसीव अज्यूम्ड एज GAV, ठीक है, वो कैलकुलेशन होता है ना आपका म्युनिसिपल वैल्यू, NAV, GAV, वो सब स्टैंडर्ड रेंट, वो सब कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, ठीक है। IHP में जब आएंगे तो विल डिस्कस इन डेप्थ। तो दिस इज अज्यूम्ड एज द GAV नाउ आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस, और उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% निकाल दो, 52,500 इज अ टैक्सेबल रेंट। Last part, sorry, second last. Dividend from RP Limited Indian company by Indian company accrue arise, number 3, point number 3, accrue arise इंडिया में हो गया, खत्म, सबके लिए टैक्सेबल है, भर दो, ओके। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, एग्रीकल्चरल इनकम, आपको जब मैंने बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर पढ़ा, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखो, उसमें बहुत कुछ एग्रीकल्चरल इनकम में मैंने बोला है, बहुत कुछ इन डेप्थ में बोला है, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड हैव अ व्यू एट दैट, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स वेरी इजीली।
एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, अभी अगर एग्रीकल्चर इनकम आप देखा जाए तो वो तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखना चाहिए इनकम में इंक्लूड करना है कि नहीं, तो आर के लिए तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। इन लैंड इन गुजरात में लैंड भी इंडिया में, तो आर के लिए भी अक्रूअराइज हो गया इधर, करेक्ट। नॉन रेसिडेंट के लिए भी अक्रूअराइज हो गया, बट क्या ये एज पर इंडियन इनकम टैक्स इज इट टैक्सेबल? नो इट्स नॉट। सेक्शन 10(1) उसको एग्जेम्प्ट कर देता है आपको, ठीक है, ओके। तो ये भाई साहब देखो फर्क, look at this 83,000, now if you take this as crores, 83,000 crore, 21,000 crore, 20,000, huge difference, ठीक है, ह्यूज डिफरेंस। तो दैट इज हाउ एक आर में ज़्यादा बर्डन आता है कंपेयर टू एन RNOR एंड कंपेयर टू अ नॉन रेसिडेंट, ओके। चलो नेक्स्ट, अभी ये मैं आपको बोल रहा था, ये जो है इनकम डीम टू अक्रूअराइज है, ये आपका सेक्शन 9 बहुत केयरफुली पढ़ना बेटा, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या दिया है ना, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दिया है, जो बोलता है कि अगर आप ये ब्रैकेट्स में आ जाते हो तो भले आपको इनकम किधर भी दुनिया में मिलने दो, बाहर न्यूजीलैंड में मिलने दो, लेकिन हम फिर भी उसको टैक्स करेंगे इंडिया में, विल डीम इट टू अक्रूअराइज। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा कोई FD है न्यूजीलैंड में, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है क्या वो अक्रूअराइज इंडिया में होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अगर वो FD का कुछ कनेक्शन वगैरह इंडिया में है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया। अ जिस्ट ऑफ व्हाट सेक्शन 9 इज, तो सेक्शन 9 का बेसिक फंडा है इज टू ब्रिंग इनकम इन इंडियन हैंड्स, टू ब्रिंग इनकम टू टैक्स इन इंडिया बाय वे ऑफ अ डीमिंग प्रोविजन। वो एक्चुअल नहीं है, हम फिर भी मान लेंगे कि वो ऐसा ही है। क्यों? अगर आप क्लॉजेस बराबर से सब ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। जैसे एक सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बोल दूँ, any income accruing or arising to an assessee in any place outside India, whether directly or indirectly, through or from any business connection or any property in India, through or from any asset or source of income, or through the transfer of capital asset। मतलब अगर मैं न्यूजीलैंड में बैठा हूँ, मैंने अगर इंडिया में घर बेचा तो क्या वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बोल दिया। अगर मैं न्यूजीलैंड में बैठा हूँ, इंडिया में घर रेंट पे दिया, तो क्या ये रेंटल इनकम मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा? अक्रूअराइज, यस, डीम टू अक्रू, उसको डीमिंग प्रोविजन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अक्रूअराइज इज अ वेरी जनरल कंसेप्ट, उसमें शायद पीपल माइट नॉट गो इन डेप्थ, इसलिए अक्रू डीम टू अक्रू में बोल दिया कि नहीं हम मानेंगे। अगर मैंने इंडिया में FD बनाया तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो FD पे मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या वो डीम टू अक्रूअराइज में कवर आती है? डेफिनेटली। अगर मैं एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से, जैसे बिजनेस कनेक्शन का एक्सेप्शंस दिया हुआ, बिजनेस कनेक्शन मतलब मैं बिजनेस करता हूँ इंडिया में, तो अगर मैं बिजनेस करता हूँ बाहर से, तो मेरे लिए क्या ये बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, भले मैं रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो? येस, डीम टू अक्रूअराइज हो जाएगी। और डीम टू अक्रूअराइज हो जाता है तो भले वो किधर भी मिले, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डीम टू अक्रूअराइज होगा तो ये वाला प्रोविजन, ठीक है, तो डीमिंग टू अक्रूअराइज हो गया तो नॉन रेसिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल होता है। तो बेसिकली इफ़ यू सी, एक ROR को ग्लोबल इनकम पे टैक्स होता है, एक RNOR को ग्लोबल इनकम पे ही होता है, लेकिन बाहर के इनकम पे नहीं होता सिर्फ, ठीक है। एंड एक नॉन रेसिडेंट को थोड़ी और छूट दी जाती है, बाहर के कोई भी तरह के इनकम पे नहीं, ठीक है। तो RNOR के लिए जैसे बिजनेस वाली इनकम वगैरह रहेगा तो वो टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन नॉन रेसिडेंट को तो कोई भी बाहर के इनकम पे टैक्स नहीं है। तो दैट वे बाइफर्केशन हैज बीन डन कि RNOR और NR के लिए, जैसे हमने रिसीव, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू, डीम टू अक्रूअराइज एंड अक्रूअराइज आउटसाइड, तो वो 5 कंडीशन में किन किन को टैक्सेबल होएगा। ROR को सब में होएगा, RNOR को भी सब में होएगा, सिर्फ तीसरे लास्ट पॉइंट में ओनली इफ इट इज फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, उसको बाहर पैसा मिल रहा है। नॉन रेसिडेंट के लिए तो वो भी नहीं है। ये जो सेक्शन 9 है ये आप बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हायर चार्जेस और रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ मशीनरी और बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया। तो अगर मिस्टर A मिस्टर B को न्यूजीलैंड में रेंट पे करते हैं क्यों? क्योंकि मिस्टर A उसका मशीन्स यूज़ करता है, तो क्या ये रेंट उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा? डेफिनेटली टैक्सेबल हो जाएगा 100%, क्योंकि वो मिस्टर B के लिए डीम टू अक्रूअराइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो क्लॉज में डाल दिया है। अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आस्क फॉर प्रूडेंट कंसेप्ट, येस एब्सोल्युटली अक्रूअराइज इधर ही हो रहा है उसका, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई स्पेसिफिक चीज़ें लिखे नहीं रहेंगे ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन लिटिगेशन फॉर द डिपार्टमेंट टू प्रूव दैट इट इज एक्चुअली अक्रूअराइज इन इंडिया। इसलिए वो चीज़ डीमिंग प्रोविजन से सिक्योर्ड बना दी गई है। डिपॉजिट्स विद एन इंडियन कंपनी फॉर विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगेन ये पैसा बाहर मिल रहा है लेकिन उसको असेट इंडिया में है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी और फ्रॉम एनी असेट और सोर्स ऑफ इनकम।
या मिस्टर एक्स रेसिडेंट इन न्यूयॉर्क, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल से बाहर चला गया, मिस्टर एक्स न्यूजीलैंड छोड़ के न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क यूएसए में है, हैज अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया विच हैज बीन गिवन ऑन रेंट, रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है, वेदर सच रेंट इज रिसीव्ड बाय हिम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एज द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान दो, रेंट रिसीवेबल भी है, ठीक है। तो अगर आप रेंटल एग्रीमेंट 11 महीने का बनाते हो और आपको 12वें महीने का रेंट मिला नहीं है, फिर भी आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कितना रेंट ऑफर करना पड़ता है, पूरा 12 महीने का, क्योंकि रिसीवेबल भी टैक्स्ड है ऑन अक्रूड बेसिस। इसलिए क्या बोले यहाँ पे, डीम टू अक्रू और अराइज। अक्रू, बेसिक वर्ड ऑफ मीनिंग ऑफ अक्रू क्या होता है, ठीक है, मतलब आपको मिलने का ये है, यू कैन गेट इट, बट ड्यू कभी ओनली यू हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश। ड्यू मतलब वो ऑलरेडी आपको देना है, अभी तक दिया नहीं। अक्रू मतलब वो देने का लायबिलिटी नज़दीक आता जा रहा है। जैसे मैंने अगर मिस्टर एक्स से पैसा लिया है तो मेरे को उसको इंटरेस्ट भरने गया, अब मैं उसको इंटरेस्ट भर रहा हूँ, तो डे वन जब उसने मेरे को लोन दिया तभी से इंटरेस्ट तो अक्रू होते जा रहा है, लेकिन क्या वो ड्यू है, अभी तक ड्यू नहीं है। ड्यू उसको बोला मैं अगले महीने के 15 तारीख तक मेरे को टाइम दे, उसके बाद तो मेरे को कभी भी आके मांग, तो वो अगले महीने के 15 तारीख तक रुकता है, तो तब तक तो इंटरेस्ट अक्रू होते रहते हैं। लेकिन ड्यू कब से होने लगता है, 16वें दिन से ड्यू होता है। तो ये होता है अक्रू और अराइज। तो इसलिए बोले रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब अक्रूड नॉट ड्यू, ठीक है। ड्यू मतलब डेट के बाद, लेकिन अक्रू तो आपका डे वन से होने लगता है। नाउ ये एक पॉइंट है बेटा, ध्यान दो, क्योंकि नीचे का क्वेश्चन उसके ऊपर है। इनकम फ्रॉम सैलरीज पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो गवर्नमेंट को ही सर्विसेज दे रहा है बाहर, ठीक है, फॉरेन कंट्री में। इनकम फ्रॉम सैलरीज विच इज पेबल बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया वुड बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। से अगर गवर्नमेंट है, उसका कोई भी एक्स बंदा है, वो बाहर गया है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो बाहर गए हैं और वो गवर्नमेंट के लिए से फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं, या फिर वो बाहर जाके कुछ इंडिया के रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, या फिर वो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया करे, तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है उसका क्या होगा, इट वुड बी डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया, तो सैलरी डीम टू अक्रू हो जाएगी। द फॉलोइंग कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड ट्रीट सच इनकम एज डीम टू अक्रू। तो इनकम क्या, भले वो आप बाहर पे कर रहे हो, लेकिन वो उसकी इंडियन इनकम मानी जाएगी। इनकम शुड बी चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज। द पेयर शुड बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो दे रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द रेसिपिएंट हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटीजनशिप इंडिया होनी चाहिए। द सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, डेफिनेटली अगर वो बाहर जा रहे हैं तो सर्विसेज भी बाहर ही देने वाले, इंडिया में कैसे देंगे। तो ये होगा, तो जो सैलरी पार्ट है, द सैलरी पार्ट विल बी टैक्सेबल फॉर सच पर्सन। हाउएवर allowances or perquisites paid or allowed outside India by the government to an Indian citizen for services rendered outside India is exempt by virtue of section 10(7). तो यहाँ पे बोले अलाउंस क्या होता है बेटा, व्हाट इज अलाउंस। अलाउंस मतलब आपका जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है, जैसे आपको ट्रैवल अलाउंस दे दिया, एनी मेडिकल अलाउंस दे दिया, अर्जेंसी अलाउंस, कुछ भी हो सकता है। परक्यूजिट्स आर जनरली नॉन मॉनेटरी इन नेचर, ठीक है, नॉन मॉनेटरी होते हैं, जैसे आपको रूम दे दिया वहाँ पे रहने को, होटल दे दिया, जैसे आपको खाना फ्री दे दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, तो वो परक्यूजिट्स होते हैं। इसलिए अलाउंस पेड और परक्यूजिट्स अलाउड बोल दिया, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं, तो अलाउंस और परक्यूजिट्स दिया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। Exemption under section 10(7) would be available to assessee irrespective of the regime under which he pays tax। आपको ये ओल्ड regime न्यू regime के बारे में जानना है तो प्लीज़ गो टू माई बेसिक कंसेप्ट का चैनल, उसमें लेक्चर, उसमें मैंने regime का भी पूरा अंडरस्टैंडिंग दिया है आपको, ठीक है। एंड वी हैव gone through a thorough calculation of taxes and everything in the first lecture, so please see that and then come here, it will be very smooth for you, ठीक है। illustration number 6 की बात करते हैं। Mr. David, an Indian citizen, aged 40 years, a government employee serving in the Ministry of External Affairs, left India for the first time on 31st March 24 due to his transfer to High Commission of Canada। ठीक है, बाहर चला गया। ये आप ध्यान रखो, ये वर्ड्स में उलझ मत जाओ, अरे ये क्या होता है, वो क्या होता है, नो नो नो, यू आर ओनली कंसिडर्ड विद द मेन क्रक्स ऑफ द लॉ। कहाँ बाहर गया, ठीक है।
He did not visit India any time during the previous year 24-25. He has received the following income for the financial year 24-25. चलो बात करते हैं. सैलरी कितने उसका कंप्यूटेड दिया 5 लाख. फॉरेन अलाउंस नॉट इंक्लूडेड इन वन अबाउट 4 लाख. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया 1 लाख. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल 2 लाख. एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल 2,50,000. ठीक है, अभी उसका GTI निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम. वेरी सिंपल. अभी जो पढ़ा उसके ऊपर से आप पहले 2 पॉइंट का तो आंसर 100% दे दोगे, है ना. तो सैलरी जो 5 लाख है वो तो सीधा टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9. एंड अगर और डेप्थ में जाना है तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 913. फॉरेन अलाउंस कंप्लीटली एग्जेम्प्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10(7). इंटरेस्ट ऑन FD फ्रॉम बैंक इन इंडिया. अभी मेरे को सबसे पहले ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. ये 40 ईयर्स के. इन्होंने कब निकला, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 24. ठीक है, 31 मार्च 24 को ही निकल गया, मतलब लिटरली एक दिन पहले निकल गया फाइनेंशियल ईयर 24-25 के. तो अभी तक तो ही डिड नॉट विजिट एनी टाइम, तो आया ही नहीं है. तो 182 से कम है तो नॉन रेसिडेंट हो गया. ठीक है, अब नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट ऑन FD फ्रॉम बैंक इन इंडिया क्या है, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रू, डीम्ड टू अक्रू में आता है. अक्रू में डेफिनेटली आता है क्योंकि उसका उद्घाटन, उसका रूट्स आर इन इंडिया दिस इनकम का. तो 1 लाख इज टैक्सेबल. एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल. ये नॉन रेसिडेंट ने एग्रीकल्चर किया है नेपाल में, तो ऐसा इनकम जो है नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल होता है क्या? ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि नॉन रेसिडेंट है. नॉन रेसिडेंट को बाहर के इनकम में कहाँ टैक्स आता है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, तो यहाँ पर भी हाउस प्रॉपर्टी किधर है, उसकी नेपाल में, तो कुछ नहीं आएगा. As per section 6(1), Mr. David is a non-resident for the year 25-26 since he was not present in India at any time. सीधी बात है, बोला है not present. As per section 5(2), a non-resident is chargeable to tax in India only in respect of the following incomes: income received or deemed to be received in India, and income accruing or arising or deemed to accrue or arise in India. In view of the above provisions, income from agriculture in Nepal and income from house property in Nepal would not be chargeable tax in the hands of Mr. David, assuming that the same was received in Nepal. अगर ये समझो, अगर उन्होंने ट्विस्ट किया रहता है, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है भले बाहर की है, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में रिसीव्ड हुआ है भले बाहर की है, तो क्या होता? उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरीज पेबल बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 913. वेरी सिंपल. Hence, such income is taxable in the hands of Mr. David, even though he is a non-resident. Very simple. However, allowance or perquisites paid or allowed as such outside India by the government of citizens of India for rendering services outside India is exempt under section 10(7). Hence, foreign allowance of 4 lakh is exempt. अभी सैलरीज कंप्यूटर 5 लाख है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 लाख है. अभी ये तो वैसे भी नॉन रेसिडेंट है, ये तो टैक्सेबल नहीं है. अज्यूम दैट दे आर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दैट इज दे वर रिसीव्ड इन नेपाल. तो उसका GTI कितना हो जाता है? 6 लाख हो जाता है. हाँ, अभी बात करते हैं. अभी अगर मैं बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर एग्रीकल्चर इनकम जो है ये इंडिया में रिसीव्ड हुआ, तो ये तो पॉइंट नंबर 1 में कवर्ड हो गया ना बेटा, ये तो सीधा टैक्सेबल हो जाएगा उनको. ठीक है, भले आपका एग्रीकल्चरल इनकम इन नेपाल है, क्या ये एग्जेम्प्ट होएगा? क्योंकि नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है? एग्रीकल्चरल इनकम होना चाहिए लैंड इन इंडिया. ये एग्रीकल्चरल लैंड नेपाल में, इसलिए तो एग्रीकल्चर नेपाल में किया उसने, तो वो तो एग्जेम्प्ट नहीं होने वाला. तो 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, भले हाउस प्रॉपर्टी बाहर है, उसका पैसा कहाँ हुआ है? रिसीव्ड. इनकम इज रिसीव्ड इन द इंडियन बैंक अकाउंट. 2,50,000 का टैक्स सीधा इंडिया में टैक्स. तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख एंड 10,50,000 हो जाता है उसका GTI. सिर्फ उसका ये पर्टिकुलर 4 लाख एग्जेम्प्ट हो जाता है 10(7) के हिसाब से. ओके, तो ये हो गया बेटा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6. ओके, नाउ 915, 916 एंड 917. ठीक है, ये तीनों साथ साथ में चलते हैं. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये सब. ठीक है, अभी पढ़ते हैं यहाँ पे, ध्यान देना. ठीक है, इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट किसके लिए कब टैक्स? इंटरेस्ट कब आता है? इंटरेस्ट तब आता है जब किसी एक बंदे ने एक दूसरे बंदे से बोरोइंग किया रहेगा और वो जो दूसरे बंदे ने बोरो किया वो उसको इंटरेस्ट पे करते हैं. तो अंडर सेक्शन 915 एंड इंटरेस्ट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेएबल बाय द गवर्नमेंट.
तो अगर गवर्नमेंट ने किसी से भी बोरो की है और गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट पे करती है तो ऐसे इंटरेस्ट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाता है। तो डीम टू अक्रू अराइज तो नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल आता है बेटा, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, RNOR, किसी को सबके लिए टैक्सेबल है। अगर ये इंटरेस्ट पेएबल है बाय अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए रेसिडेंट है, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को इंटरेस्ट पे करते हैं, भले बी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, तो मिस्टर बी के लिए वो चीज़ टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन वेयर इट इज पेएबल रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट, अ लोन इनकर्ड और मनी बोरोड and used for the purpose of business or profession carried on by him outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India, it will not be deemed to accrue or arise in India। यहाँ पे क्या बोल दिया, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे बोल दिया है कि अगर मिस्टर ए जो रेसिडेंट है, ठीक है, उसने मिस्टर बी से पैसा लिया और ये जो पैसा लिया है ना, उसने ये पैसा जाके न्यूजीलैंड में डाल दिया। क्यों? उधर बिजनेस करने के लिए, या तो फिर न्यूजीलैंड के शेयर मार्केट में डाल दिया। क्यों? पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे फंड्स पे जो इंटरेस्ट मिस्टर ए मिस्टर बी को देगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होएगा। यहाँ यही बोला है, ठीक है। वेयर इट इज पेएबल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स, फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, बेसिकली इट विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ऐसे केस में मिस्टर बी को जो इंटरेस्ट मिलेगा, जब मिस्टर ए रेसिडेंट है, मिस्टर बी से उधार लिया है, अब बी से उधार लेके वो न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाके उधर पैसा बिजनेस में डालते हैं, या तो फिर उधर शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं इनकम कमाने के लिए, या FD बना देता है इनकम कमाने के लिए, व्हाटएवर XYZ, ठीक है। तो ऐसे केस अगर है और ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मिस्टर बी को, क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा मिस्टर बी के लिए? नहीं होगा, ठीक है। सिंपल बात है। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बिजनेस इंडिया में करता मिस्टर ए, तो वो इंडिया में जब करता तो वो PNL में क्या डालता? इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर बी। तो अगर इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर बी करता तो उसका प्रॉफिट्स कम हो जाता, अगर प्रॉफिट्स कम हो जाता तो उसका टैक्स कम हो जाता, और अगर ये पर्टिकुलर इनकम, अगर इंटरेस्ट जो मिस्टर बी के आपने टैक्सेबल नहीं करोगे तो मिस्टर बी भी पैसा लेके भाग जाएगा। तो बेसिकली दोनों जगह से एक्सपेंस भी बुक हो गया, इनकम भी एस्केप हो गया, तो टैक्स तो निकल गया फिर। तो ये एनालिसिस है बेटा, ठीक है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लॉज। थर्ड पॉइंट, एन इंटरेस्ट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेएबल बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट when it is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on in India by him। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट, मिस्टर ए इज अ नॉन रेसिडेंट स्टेइंग इन न्यूजीलैंड, अगर ए ने बी से पैसा बोरो किया, अब बी नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, ए नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, ए ने बी से पैसा लिया, अब ए ने वो पैसा लेके इंडिया में डाल दिया बिजनेस करने के लिए, ठीक है। ए ने क्या किया? ए ने इंडिया में पैसा डाल दिया बिजनेस करने के लिए। तो ये जो बिजनेस करने के लिए पैसा डाला है, ए अगर उसको पे करेगा, क्या बोलते हैं, ए अगर इंटरेस्ट पे करता है बी को, तो इन दैट केस दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल फॉर बी। अगेन द सेम लॉजिक वर्क्स के ए विल क्लेम इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस इन हिज PNL इन इंडिया एंड द सेम हैज टू बी टैक्स्ड इन बीज हैंड्स। बट अगर ए पे करता है इंटरेस्ट ऑन मनी इज बोरोड बाय नॉन रेसिडेंट फॉर एनी पर्पस इन इंडिया अदर देन अ बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया। सिंपल फैक्ट है, ठीक है। अगर ए न्यूजीलैंड में बैठा है, वो नॉन रेसिडेंट है, उसने बी से पैसा बोरो किया और वो पैसा उठा के इंडिया बिजनेस में डालता है, ठीक है, इंडियन बिजनेस में डालता है, तो इन दैट केस जो इंटरेस्ट पे करेगा वो बी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिया में पैसे डालता है बिजनेस के लिए, नहीं, FD बनाने के लिए, शेयर मार्केट में डालने के लिए, इनकम कमाने के लिए, ठीक है, तो या अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो मिस्टर बी को, क्या वो टैक्सेबल होएगा? नहीं होएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। फॉर एग्जाम्पल, if a non-resident A borrows money from non-resident B and invests the same in shares of an Indian company, interest payable by A to B will not be deemed to accrue as in India। तो ये दोनों बहुत सिंपल है। अगर एक रेसिडेंट अगर पे करता है बाहर, ठीक है, अगर एक रेसिडेंट पे करता है बाहर, किसी को भी इंटरेस्ट पे करता है, अगर वो बिजनेस के लिए, तो वो जो रेसिडेंट अगर किसी भी बाहर बंदे को पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा जो है, लोन, वो बाहर ही जाके लगाया उसने बिजनेस या अदर पर्पस के लिए, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा।
अभी यही उल्टा अगर करें हम, जो बाहर से बोरोड पैसा अगर इंडियन बिजनेस में डाल दिए तो इंटरेस्ट जो पे करें वो टैक्सेबल रहेगा, अदर देन दैट रहेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। रॉयल्टी सिमिलर लाइंस पे चलते हैं। रॉयल्टी इज व्हाट बेसिकली, जो आप कॉपीराइट एक्ट वगैरह अगर पढ़ोगे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IRPs जो रहते हैं, IRPs में रॉयल्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एनी पर्सन हु यूजेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, आपके डिज़ाइंस हो, एनी और दीज टाइप ऑफ असेट्स जो रहते हैं, इंटैंजिबल्स जो रहते हैं, उसको यूज़ करने के लिए जो रॉयल्टी पे करते हैं, जो कंसिडरेशन देते हैं, उसको रॉयल्टी माना जाता है। ठीक है, एंड एज पर कॉपीराइट एक्ट इट इज़ मैंडेटरी टू पे रॉयल्टी फॉर कॉपीराइट। एंड रॉयल्टी को अगर नहीं अलाउ करोगे आप, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें रॉयल्टी नहीं अलाउड है या नहीं पे होगा, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड। ठीक है, रॉयल्टी विल बी डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया व्हेन इट इज पेएबल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी को भी रॉयल्टी देगा, सबको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, अभी इंडियन रेसिडेंट वेयर वो किसी को भी पे करता है रॉयल्टी, तो वो सामने वाले के लिए रॉयल्टी इंडिया में टैक्स हो जाएगी। Exception, where it is payable in respect for the transfer of any right or the use of any property or information used or for the utilization of services for the purpose of business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India. Same like interest, same. अगर ये रॉयल्टी जो पे कर रहा है उसके अगेंस्ट जो उसको इन्फॉर्मेशन, असेट, इंटेंजिबल्स मिल रहे हैं, वो इंटेंजिबल्स वो उठा के बाहर लेके जा रहा है बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या तो फिर बाहर वो किसी और पर्पस के लिए जा रहा है जिससे ही वांट्स टू अर्न मनी विद दिस पर्टिकुलर इंटेंजिबल्स, देन इन दैट केस द रॉयल्टी व्हिच इज पेइंग टू द सामने वाला नॉन रेसिडेंट, दैट इज एक्सेप्ट फॉर दैट पर्सन। सिमिलरली रॉयल्टी विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया व्हेन इट इज पेएबल बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट। अभी वो बाहर वाला कहानी हो गया। अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट only when the royalty is payable in respect of any right, property or information used or services utilized for purpose of business or profession carried on in India or for the purpose of making or earning any income। यही तो मेन डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्शन बोल दिया था, अगर बाहर वाला बंदा नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, वो अगर इंटरेस्ट पे करता है और वो वाला पैसा वो बिजनेस में इंडिया में वापरता है। हाँ बेटा ये देखो, अगर इंटरेस्ट जो बंदा बाहर है वो अगर इंटरेस्ट पे करे कोई दूसरे नॉन रेसिडेंट को और वो पैसा जो है बिजनेस के लिए इंडिया में यूज़ करे तो वो सामने वाले के लिए टैक्सेबल होता है, अगर अदर पर्पसेस के लिए होता है तो नहीं टैक्सेबल होता है। लेकिन रॉयल्टी में ऐसा नहीं है। अगर रॉयल्टी वो नॉन रेसिडेंट दूसरे बंदे को पे कर रहा है, इंडिया में बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर अदर सर्विस के लिए भी यूज़ कर रहा होगा, तो भी उसको टैक्सेबल हो जाएगा। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। सेम एग्जैक्टली सेम इज FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब यहाँ पे रॉयल्टी का काफ़ी सारे डेफिनेशन, प्रोसेसेस, रॉयल्टी क्या होता है ये सब बताया है। ठीक है, ये सब आप जब पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ना। अभी सिंस टाइम कंस्ट्रेंट के बेसिस पे आई कैन नॉट गो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, सेक्शन 917 क्या बोलते हैं? Any fees for technical services will be deemed to accrue in India if they are payable by the government. Government FTS किसी को भी दुनिया में देगी, सबके लिए टैक्सेबल है। By a person who is a resident India, अगर resident India किसी को भी देगा टैक्सेबल है। The exception where the fees are payable in respect of technical services utilized in a business or profession carried on by such person outside India और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। तो अगर ये जो FTS पे कर रहा है, क्यों पे कर रहा है? क्योंकि वो ये जो FTS के बदले में जो टेक्निकल सर्विसेज हो, जो कंसल्टिंग सर्विसेज हो, वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं? न्यूजीलैंड के एक बिजनेस में वापर रहे हैं या फिर न्यूजीलैंड के शेयर मार्केट में वापर रहे हैं, तो वो जो FTS पे कर रहा है वो एग्जेम्प्ट है। यही उल्टा कर दो, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है वो एक बंदे को FTS पे करता है, क्यों? इन रिस्पेक्ट ऑफ services utilized in a business or profession carried on by the non-resident in India। वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इसलिए बाहर वाले ने दूसरे बाहर वाले को FTS पे किया और वो इंडिया में बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है वो उसके सर्विसेज को, या फिर अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ करें तो इन दैट केस वो भी आपका FTS कवर्ड हो जाएगा एंड इट विल बी टेकन इन इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एक स्मॉल डेफिनेशन दिया, कंसिडरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, आपके जो मैनेजमेंट सर्विसेज है, टेक्निकल सर्विसेज रहते हैं, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इज सच अ बिग फील्ड टुडे, तो अगर ऐसे सर्विसेज में आते हैं तो उसको FTS माना जाता है। ओके,
ये आपको टेरिटोरियल नेक्सस के कोई टेरिटरी के बेसिस पे नहीं होता, इट इज़ प्योरली बेसिस किधर भी हो उसको टैक्स हो जाएगा, ठीक है। इन इफेक्ट द इनकम बाय वे ऑफ एफटीएस, interest or royalty from services utilized in India would be deemed to occur in India in case of a non-resident and be included outcome whether or not such services were rendered in India. इंडिया में रेंडर किए नहीं किए, लेकिन अगर इंडिया के लिए रेंडर किए, इंडिया में बिजनेस के लिए किए गए हैं, तो in that case it will be definitely taken to be considered as deemed to occur in India. Illustration number 7 की बात करते हैं. Miss Vivita had paid a sum of $5,000 to Mr. K रखता हूँ यहाँ पे, अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो. अब ये क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट मतलब इसको जो पैसा जाएगा वो क्या नाम से आएगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. एंड ये बंदा कहाँ प्रैक्टिस करता है, कोलंबो में प्रैक्टिस करता है, स्पेशलाइजिंग इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, वो अपने वो इररिलेवेंट है. तो वी ने के को पे किया 5,000 रुपया, पकड़ो 5,000 रुपया पे किया, ठीक है, एफटीएस पे किया. अब देखते हैं एफटीएस का क्या बिजनेस के लिए अदर पर्पस क्यों दिया. द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो, चलो ठीक है. K is a non-resident, चलो बहुत बढ़िया. The consultancy is related to a project in India with possible Ceylonese collaboration, ठीक है. Is this payment chargeable tax in India in the hands of Mr. K since the services were used in India? Absolutely. क्या बोलो, अपने माइंड में आंसर सोच के फिर देखना. Definitely yes, ठीक है, क्योंकि FTS जो वो बाहर पे कर रहा है वो कहाँ पे, वो बिजनेस इन इंडिया में यूज हो रहा है. तो अगर वो इन इंडिया कनेक्शन बिजनेस है तो FTS is taxable as per deemed to occur as in India as per section 917. A non-resident is chargeable tax in respect of income received. एक्चुअली वी भी नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि अ पर्सन हु इज़ अ नॉन रेसिडेंट वो पे करता है. तो जैसे यहाँ पे देखो एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा. A non-resident is chargeable tax in respect of income received outside India only if such income accrues or arises or deemed to accrue or arises to him in India. The income deemed to accrue or arise in India under section 9 comprises inter alia, मतलब among others, बाकी सारी चीज़ों में क्या क्या, ये भी एक पॉइंट है. Comprises inter alia income by way of fees for technical services, which includes any consideration for rendering of any managerial, technical or consultancy services. Therefore, payment to a management consultant relating to project financing is within the scope of FTS. Very simple. Explanation देखो कैसा अच्छे से लिखा है. The explanation below section 9(2) clarifies that income by way of inter alia fees for technical services from services utilized in India would be deemed to accrue or arise in India in case of a non-resident and be included in his total income, whether or not such services were rendered in India and whether or not the non-resident has a residence or a place of business or business connection in India, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. जैसे ये वाले क्लॉज में, ये वाले सेक्शन में आपको क्लियर, मतलब एक्सप्लेनेशन में क्लियरली दिया है कि वो सर्विसेज किधर भी रेंडर होना, बट द सर्विसेज शुड रिलेट टू इंडिया, इंडियन बिजनेस और इंडियन अदर एरियाज जहाँ पे उसको पैसे कमाने हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है. In the instant case, since the services were utilized in India, the payment received by Mr. K, a non-resident in Colombo, is chargeable tax in his hands in India, as it is deemed to accrue or arise in India. Very simple, but very conceptual clarity मिलता है आपको, ठीक है, that is required. Then आपका लास्ट इलस्ट्रेशन है. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर चैप्टर आई कैन टेल, ठीक है. अगर आपने ये इलस्ट्रेशन पूरा समझ लिया जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको 150% ये पूरा चैप्टर रेसिडेंस का समझ में आ गया, ठीक है. एंड ऑब्वियसली समझ आ भी जाएगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये सब चीज़, ठीक है. इट्स जस्ट प्योर लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ. इट्स वेरी सिंपल एज दैट. ओके, तो नाउ विल स्टार्ट बेटा लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं. कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज 35 ईयर्स बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है. क्या बोल दिया, बीइंग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल दिया. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट फॉर AY 25-26. चलो ठीक है. Assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 15 BSE 1A, तो न्यू रेजिम में नहीं ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हो. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ओल्ड रेजिम तो ओल्ड रेजिम, बहुत अच्छी बात. चलो स्टार्ट करते. सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया. तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ठीक है. तो ये कहाँ के बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड कहाँ के, यूके के. ओके, तो चलो पढ़ते. यहाँ पे देखो
अगर ये बॉन्ड यूके का है, 50% ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया। सबसे पहले आरओआर के लिए क्या टैक्सेबल है? ग्लोबल इनकम, बेचारा वो तो गया। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। आरएनओआर 5 हेड्स क्या है बेटा? 5 हेड्स। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, accrued in arise in India, deemed to accrue arise in India, and receive accrue deemed to accrue arise outside India। ठीक है, क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है? एब्सोल्युटली। 50% ऑफ द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया, बैलेंस 50 इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो जो आरओआर रहेगा उसके लिए तो 100% रहेगा। मैं आपको दिखाते आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी लेंदी क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो आरओआर और एनआर के लिए जितना रिसीव्ड इन इंडिया में हुआ है उतना ही टैक्सेबल रहेगा, बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू अराइज, डीम टू अक्रू अराइज एंड अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। तो पहले पॉइंट में रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इंडिया कितना है इसका? 5000, समझा? तो ओनली 5000 टैक्सेबल। बेचारा आरओआर क्या करेगा? उसको बाहर भी टैक्सेबल, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, तो भी उसके लिए बाहर टैक्सेबल है। जैसे मैं आपको ये टेबल फटाक से एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। कहा गया ये देखो, ठीक है। इनकम accrue आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये 100% टैक्सेबल है। ओके, तो ये आप टेबल अपने सामने रखना एंड ओनली विद दिस टेबल यू गो थ्रू विद द क्वेश्चन, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में इसके लिए तो 10,000 पूरा टैक्सेबल, इसके लिए जितना इंडिया में रिसीव हुआ उतना टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव इन इंडिया। इंडियन बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है। हाँ बेटा, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो क्लियर कट इंडियन इनकम ही हो गया उसका। अक्रू अराइज इंडिया से हो रहा है, तो 50% रिसीव इंडिया और 100% रिसीव इंडिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? उसका पूरा बिजनेस का रूट इंडिया में है, तो अगर पूरा रूट ही इंडिया में है तो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। तो 20-20-20 टैक्सेबल फॉर एवरीबडी, नो नीड टू बाइफरकेट ना। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। ये तो आरएनओआर के लिए भी तो ये अक्रू अराइज हो गया ना इंडिया में, तो डेफिनेटली वो उधर टैक्सेबल हो जाता है। डीम टू अक्रू अराइज में ही बिजनेस कनेक्शन है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन, क्या बोलते हैं यहाँ पे? एसटीसीजी है, इंडियन कंपनी की, रिसीव्ड इन लंडन। आरओआर तो गया बेटा, वो तो सीधा गया, ठीक है। आरएनओआर के लिए क्या होगा? रिसीव्ड इन लंडन है, एसटीसीजी। एनआर के लिए क्या होगा? आरएनओआर के लिए भी तो टैक्सेबल है, क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स है। रिसीव किधर भी, अक्रू तो यहाँ पे हो गया। एंड एनआर के लिए भी तो डेफिनेटली अक्रू इन इंडिया हो गया, तो तीनों के लिए 20,000 टैक्सेबल हो गया। ओके, नेक्स्ट। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन, ये तो बाहर की बात है, पूरी की पूरी बाहर की बात है, लेकिन बेचारा आरओआर तो मर गया, बाकी दोनों एग्जेम्प्ट। ओके, समझ रहे ना? वो टेबल सामने रख के करो, बहुत सिंपल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, 50% ऑफ गेन्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये क्या बेचा? एक प्लांट है जर्मनी में बेचा उसको, 50% गेन्स इंडिया में आया है, ठीक है। तो ये जो 40,000 है, अब ये जो आरओआर भाई साहब है ये तो पूरा गया, 40,000 गया, ठीक है। अभी ये जो आरएनआर और एनआर है इनके लिए क्या है? अक्रू अराइज होता है बाहर का इनकम टैक्सेबल है, इसके लिए उसे बिजनेस और प्रोफेशन वाला है ना, थोड़ी कैपिटल गेन और सेल ऑफ प्लांट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ी है इसके लिए टैक्सेबल, सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी नॉट टैक्सेबल। तो इसके लिए जो रिसीव्ड इन इंडिया वाला कंसेप्ट आ जाता है वही आ जाएगा, ठीक है। तो 20,000 टैक्सेबल फॉर आरएनआर एंड नॉन रेसिडेंट, बिकॉज अक्रू अराइज हो गया उसको इन इंडिया, ठीक है। सॉरी, रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, 20,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली, दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं और बिजनेस कहाँ चला रहे हैं? जर्मनी। अब ये आरएनआर वाला पॉइंट आ गया, बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, लेकिन पैसा बाहर मिल रहा है उसको। तो इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली, 70,000, ठीक है। 40,000 रिसीव इंडिया एंड 30,000 रिसीव आउटसाइड इंडिया। आरओआर तो बेटा गया, पूरा 70,000 टैक्सेबल हो गया। अब ये जो 40,000 है ये आरएनओआर की बात करो, आरएनओआर क्या बोलते हैं कि जितना भी मेरा बाहर का भी रिसीट्स है, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन से अक्रू अराइज हो रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 70,000 आरएनओआर के लिए भी चला जाएगा, और नॉन रेसिडेंट जितना इंडिया में है तो 70-70-40 आ जाएगा इधर आपका। ओके, नेक्स्ट। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंडन
ये तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से मैनेज करोगे। HUF है क्या? HUF तो नहीं है, कंट्रोल मैनेजमेंट रेसिडेंस नहीं पूछे। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस दिल्ली में है तो आपका अक्रूअराइज तीनों में 15,000 ठोक दो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड अ बैंक एट लंदन ब्रॉड टू इंडिया कंप्यूटेड। तो ये तो आपका हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन है ना, तो लंदन का हाउस प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आपको रेंट मिल रहा है, तो ROR के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा वो। ब्रॉड टू इंडिया, ब्रॉड टू इंडिया मतलब क्या होगा? टैक्सेबल है वो तो नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं उसको, रिपार्ट्रेशन जैसा हो गया। तो 50,000 पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। अगेन क्या ये 50,000 में मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन देना चाहिए रेंटल इनकम का? बिल्कुल भी नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि ये बाहर की है, बाहर की, ठीक है। और वैसे भी बोल दिया कंप्यूटेड, बोल दिया कंप्यूटेड बोल दिया तो आपको 50,000 रुपये वापस 30% कम नहीं करना है, ओके। इट्स अ कंप्यूटेड इनकम। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मत देना। When we'll come to IHP, we'll see what section 24(8) talks and you follow me for that particular stuff, ठीक है। आप बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब ये पर्टिकुलर लेक्चर में डालूंगा, ठीक है, ताकि आपका क्लैरिटी और बढ़ जाए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, वेरी सिंपल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी अक्रूअराइज इंडिया में हो गया, रिसीव्ड किधर भी हो गया, अक्रूअराइज 4 पॉइंट सबको कवर्ड है, 12,000 लगा दो उधर, ठीक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। आपका सर्विसेज कहाँ रेंडर हुआ है? सर्विसेज रेंडर इंडिया में होने चाहिए, आपके रिलेटेड टू इंडिया में होने चाहिए। आप किधर से भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन इंडिया, रेंडर्ड इंडिया मतलब यूटिलाइज्ड इन इंडिया। तो फीस फॉर टेक्निकल इंडिया रिसीव्ड इन लंदन, तो रिसीव बाहर हुआ है बट अक्रूअराइज कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है, तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। FTS है, FTS मतलब 917, और वो बोलते हैं ना क्लियरली आप बाहर से भी दो तो भी अगर आप इंडिया में दे रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एनी अदर सर्विसेज ऑल्सो, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि वेदर फॉर बिजनेस और अदर सर्विसेज, बट FTS इवन इफ यू अज्यूम फॉर बोथ ऑफ देम इट इज टैक्सेबल बिकॉज FTS के ऊपर यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, ठीक है। अगर इंडिया में है तो कोई भी बाहर से अगर इंडिया में आ रहा है तो कोई भी बंदा कर रहा है तो उसको अलाउड हो जाएगा FTS, तो इंडिया से उसको मिल रहा है, अक्रूअराइज फ्रॉम इंडिया हो रहा है। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, बिजनेस किधर है? मुंबई, मैनेज कहाँ से हो रहा है? लंदन से हो रहा है। अगेन मुंबई में बिजनेस है तो आपका अक्रूअराइज ही मुंबई से हो रहा है, आपका 26,000 सब जगह पे आ जाएगा। आपका उद्घाटन इधर से हो रहा है इनकम का। सिमिलरली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी नेपाल में और उसमें से इनकम भी उधर ही मिल रहा है। ROR तो मर गया, RNR डेफिनेटली एस्केप्ड, NR एस्केप्ड, ठीक है। देन पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो पिछले सालों का कुछ ऐसा इनकम था जो फॉरेन में टैक्स ही नहीं किया, न्यूजीलैंड में उसको टैक्स नहीं किया, छोड़ दिया या भूल गए, तो ऐसा इनकम को अभी वो बैंक में पड़ा है, उधर से वो इंडिया में लेके आते हैं। क्यों, क्या है? इनकम है क्या? ये तो इनकम नहीं है बेटा, ये तो सिंपल क्या है, रिपार्ट्रिएशन ऑफ फंड्स है, ठीक है। तो ये तो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हो गया तीनों के लिए, ठीक है। ये इनकम नहीं है। इनकम मतलब क्या? आप कुछ कमाते हो, इधर आप कुछ कमा नहीं रहे हो। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। एग्रीकल्चरल लैंड नेपाल में उधर ही पैसा मिला फिर इंडिया में लेके आया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उधर ही उसको पैसा मिला तो यहाँ पे ROR जो है उसके लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। RNOR बाहर का पैसा नहीं है, NR के लिए भी नहीं है, तो 18,000 डैश डैश। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। देखो कैसा आपको कंफ्यूज कर दिया आपको लैंग्वेज से। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया मतलब इंडिया में सेटअप किया था लेकिन इनकम बाहर मिल रहा है। रिसीव देयर बट स्पेंट इन इंडिया, तो बेसिकली RNR के लिए टैक्सेबिलिटी हो जाएगा ये, समझे। वो इंडिया में प्रोफेशन सेटअप करे, पैसा बाहर ले रहा है कीनिया में, ठीक है। तो ROR तो मिलेगा डेफिनेटली 100%, RNR को भी हो जाएगा लेकिन NR को नहीं होने वाला। ये कितना है? 5,000 कहाँ गया ये, ठीक है। दोनों को टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग। आप जब गिफ्ट का सेक्शन में पढ़ाऊंगा, सेक्शन 56 है, सेक्शन 56 में लिखा है अगर वेडिंग के टाइम पे कोई भी गिफ्ट मिलता है, मैरिज नॉट एनिवर्सरी या प्योर मैरिज, फर्स्ट टाइम मतलब जो मैरिज होता है उसका इंसान का, उसमें जो भी गिफ्ट मिलता है वो सब एग्जाम्प्ट होता है, तो 20,000 किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 56 में लिखा है बेटा।
इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो आपका क्लियर कट इंडियन इनकम है, अक्रू इंडियन है, उसका ओरिजिन इंडिया है, 12,000 तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड इन रशिया, बिजनेस भी बाहर है, पैसा भी बाहर है, कंट्रोल भी रशिया में हो रहा है, ठीक है। ROR वो तो बेचारा मर गया, ठीक है। RNOR, क्या RNOR के लिए बिजनेस आएगा? क्या बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से हो रहा है? क्या बिजनेस का सेटअप इंडिया? क्या बिजनेस इंडिया से सेटअप होकर पैसा बाहर मिल रहा है? क्या प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है? सेटअप मतलब क्या हो गया? कंट्रोल, जो मैनेजमेंट है उसका, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, इंडिया में है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। नॉन रेसिडेंट को तो वैसे भी नहीं, क्योंकि बाहर में पूरा बाहर का पैसा है, तो ये तो किसको आएगा? सिर्फ ROR को टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। ओके। ये जो आपको देख रहे हो ना, ये जो बाजू में लिखा है, ये उन्होंने सिर्फ नरेशंस लिखा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये क्यों ऐसा है, इसके किधर भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, ना ही आपको कोई ऐसे यूट्यूब पे प्रोफेसर्स वगैरह दिखेंगे जो ये सब कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं आपके लिए सेशन लाया हूँ ना, दिस सेशन इंश्योर्स दैट आप ये मॉड्यूल में जितने भी कंसेप्ट है ये आप समझ के ले लो, एंड अगर आप समझ जाते हो ना तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका। चलो, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम, देखो अभी ये तो आपको ही बताना चाहिए मेरे को, इंडियन इनकम है कि नहीं? ये तो अक्रू अराइज किधर से हो रहा है? ये रिसीव लिखा है, डीम टू रिसीव, तो तीन ही एक्सप्लेनेशन है, वो आप सेक्शन 7 पढ़ लो, ठीक है। फिर आपका अक्रू अराइज डेफिनेटली उसका जन्मभूमि, ये पर्टिकुलर इनकम का जन्मभूमि क्या है? इंडिया है, रिलायंस इज इंडियन कंपनी, तो 5,000 तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान, बोलो ROR के लिए टैक्सेबल है क्या? है एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन फिट करते हैं? यस, प्लीज सी माय लेक्चर 1 फॉर दिस, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि लैंड इंडिया में है उसका, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर डेफिनेशन में सेक्शन 2(1) में उसको बराबर फिट कर रहा होगा, तो 15,000 कंप्लीटली तीनों के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(1). ये उसका GTI आएगा। अब मेरे को बोलो, डिडक्शंस में देयर इज वन डिडक्शन सेक्शन 80 TDI, क्या बोले ऊपर, क्या बोल दिया ऊपर? बोल दिया टोटल इनकम, बेटा टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस। ओके, अगर सिर्फ GTI बोला होता तो आप लोग यहाँ तक कैलकुलेट करो एंड यू वुड हैव एंटेड अ परफेक्ट आंसर, बट टोटल इनकम मांगा है तो आपको डिडक्शंस भी देना पड़ता है। अब डिडक्शंस तो कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो खत्म हो गया, सिर्फ इनकम सोर्स ही दिया है। नहीं नहीं नहीं, सेक्शन 80 TTA, और ये बंदा का एज क्या है दिया है? एज 35 ईयर्स, तो 80 TTA मिलेगा इनको। 80 TT भी सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं। 80 TTA मतलब क्या? जो इंटरेस्ट कमाते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं। यहाँ पे देखो 10,000 कितना है यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक का, ये देखो 12,000, लेकिन मैक्सिमम कितना रहता है? 10,000, और एक्चुअल विचएवर इज लोअर, तो 10,000 एग्जेम्प्ट, एंड आपका ये जो टोटल है ये वाला टैली हो जाएगा। ओके, सो विद दिस we finally complete the second chapter, and second chapter ka I have covered a lot of concepts more than illustrations, because illustrations are little less compared to the number of concepts. आपके concepts को मैंने in depth में analyze किया है, आपको पूरा एक फ्लो चार्ट दिया कि आपको कैसे क्या समझना है, किधर अप्लाई करना है। आई होप आपको डेफिनेटली ये सब वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, and I really wish that you understand concepts and then only proceed with questions, and you enjoy your journey of chartered accountancy. Otherwise कोई मतलब नहीं है बेटा, it is only purely just reading and forgetting after some time. So I hope I am able to convince you and explain you the concepts in depth. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझा है, या किधर अगर मेरे से बाय मिस्टेक कुछ गलती हुई हो तो please feel free to ask me in the comment section. I will 100% address it to you. ठीक है? Please, if you are really gaining knowledge out of this particular channel and my videos, please like my video, comment on that, and do subscribe, press the bell notification, and please share it with all your family and friends, so that everybody can benefit and understand the Indian tax system in a much better way. Okay, thank you for today.